Right, so welcome to all of you. Today we will be talking about the PIQ form and we'll have a discussion on this कि आप इसमें क्या भरते हो, उसका भरने का क्या impact है, especially in light of the interviewing officer because he uses this as a initial base on which he decides आपको interview को किस direction में लेके जाना है. And also the PIQ form is available with the psychological test. उनके लिए इतना important नहीं है जितना वो interviewing officer के लिए. उनके लिए major emphasis on TAT responses and based on that the confirmation in W8 and SRT and SD subsequently. So दोनों के पास होता है. GTO does not have the PIQ form. इतना पता आपको? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So let's take specific to personal interview. So a candidate, a interviewing officer, the rank of the interviewing officer we have already covered in the previous classes. It can be a major general, brigadier, or a full colonel in case of Air Force, a wing commander. And the interview follows a particular sequence. तो सबसे पहले even before the candidate is called in, the interviewing officer goes through your PIQ. और उस PIQ से वो आपके बारे में कुछ initial reference points निकालता based on the inputs that you've done. We'll see that क्या है. And जब once having gone through that and he makes his initial notes and then the candidate comes inside और उसके बाद rapport building question जिसमें कि हमने already पिछले week में cover किया इसमें क्या क्या होता है. And you have already practiced when I went to Nagpur. I believe आप लोगों ने किया होगा. किया था रामन? Yes, sir. Okay, है ना? So आपको पता है Yes, sir. the aim of rapport building is to make you comfortable and prepare for the interview. And then the actual interview starts from CIQ. CIQ stands for Comprehensive Information Questionnaire. और इसके अंदर multiple type के CIQs हैं. What are those? It is CIQ on education, CIQ on early home background, CIQ on spare time hobbies and interests, CIQ on working professional, current affairs, geopolitics, self-evaluation. ये सब होता है. ये सब हमने पिछले वीक में, पिछले मतलब before I went to Nagpur, we already done that and you have practiced adequately. Most of you have shared your rehearsal videos भेजा and there is drastic improvement जो भी आप कर रहे हो. It still needs to be refined. That we will do. And then उस CIQ के ऊपर होता probing. Probing is आपने जो जवाब दिया उसके ऊपर सवाल. And we have done something called T leadership, breadth and depth of knowledge जो कि हमने पिछले वीक में मतलब नागपुर से पहले हमने किया था. And then sealing off and closing of the interview. So this is the interview format which I'm sure you would have already done it. है ना? आज हम इसका फर्स्ट पार्ट को देखेंगे PIQ फॉर्म को. एंड PIQ फॉर्म आपको पता है सिविलियन एंट्री के लिए ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, सर्विस एंट्री के लिए एक और पेज होता है. करेक्ट है ना? Yes, sir. एंड देन आई विल रिक्वेस्ट यू जो लोग पहली बार देख रहे हैं या पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप लोगों ने YouTube में जाना, एक वीडियो देखना, अंडरस्टैंडिंग PIQ. अंडरस्टैंडिंग PIQ इस वीडियो को देखना. तो इस वीडियो में मैंने हर कॉलम को कैसे भरना वो बताया हुआ है. एंड देन व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज इसका हर कॉलम के आधार पर एक CIQ है. फॉर एग्जांपल यहां पे पापा का नाम, मम्मी का नाम, उनका क्वालिफिकेशन, उनका इकोनॉम, इन सब के ऊपर CIQ एंड एजुकेशन, अपना अर्ली होम बैकग्राउंड है, पता है ना? Yes, sir. उसके बाद आपके एजुकेशन के ऊपर CIQ एंड एजुकेशन है, पता है आपको? Yes, sir. उसके बाद वर्किंग प्रोफेशनल के लिए CIQ फॉर वर्किंग प्रोफेशनल है. उसके बाद हॉबीज, इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उसके लिए हॉबीज एंड इंटरेस्ट का वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का. और उसके बाद इसके लिए ये प्रीवियस SSB एंटेप्ट है, इसके लिए CIQ नहीं है, लेकिन इसका लास्ट है सेल्फ इवैल्यूएशन, जहां पे वो पूछा जाता है कि भैया आप ये 3 बार गए हो, क्या हुआ. सो यहाँ पे आपका पुराने एक्सपीरियंस से लर्निंग एंड उस लर्निंग के बेस में इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेशन है, या तो आप करके आते हो या नहीं करके आते हो. एंड उसके के लिए एक सेपरेट CIQ है जो कि हमने पिछले बार डिस्कस किया, तो उसको यहाँ पे लिस्ट नहीं कर रहा हूं बिकॉज यहाँ पे मिक्स एंट्री है. सर्विस एंट्री का ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम किया था, तो आपको पता है हर एंट्री के ऊपर आपका अलग CIQ है. सो यू विल रियलाइज कि इसके अंदर जो भी भरते हो उसके ऊपर आपको सवाल उठाया जाएगा. एंड देन यू विल हैव टू क्या बोलते हैं, यू विल बी क्वेश्चन. तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा कि CIQ को भरते टाइम इसको
अच्छा अच्छा लिखने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि उसके ऊपर वो खोद देगा। कितना समझ में आ रहा है संदीप? Yes, 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 sir. sir. तो मैं अभी इससे आगे मैं आपको स्लाइड नहीं दिखाऊंगा, आपको कानों से सुनना है, समझना है। किसी को पीआईक्यू फॉर्म नहीं मिला है तो मैं पीआईक्यू फॉर्म आपको दे दूंगा, आप उसको बाद में देख लेना, वरना अपना अपना पीआईक्यू फॉर्म निकाल लो बाहर। मैं यहां से स्लाइड बंद कर रहा हूं। किसी को अभी पीआईक्यू फॉर्म बैच वाले को नहीं है तो आप मुझे ग्रुप अभी बता दो, मैं ग्रुप में दोबारा शेयर कर दूंगा या कर ही देता हूँ। जो फ्री डेमो sir. क्लास वाले हैं, आई एम श्योर आप लोगों के पास होगा, नहीं होगा तो आप मुझे शेयर कर दो, मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा। इज इट क्लियर? तो अपना Yes, अपना sir. पीआईक्यू फॉर्म निकाल लो, और जिसके पास पीआईक्यू फॉर्म नहीं है कोई बात नहीं, आप उसको सुनो एंड देन उससे बाद में कलेक्ट कर लेना। निकाल लिया सबने? Yes, sir. तो मैं अभी कुछ चीजें बताता रहूंगा, आप अपने पीआईक्यू फॉर्म को सामने रख के मेरी बातों को ध्यान से सुनना, समझना और नोट्स बनाना। इवन तो मैं मुंह से बोलूंगा लेकिन आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। इज दैट अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. शुरू करें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं आपको स्लाइड इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप आंखों से देखने की जगह कानों से सुनो और एक्टिव लिसनिंग सुनो। ये वर्ड सुना, एक्टिव लिसनिंग? Yes, sir. Yes, sir. सारा Yes, सीआईसी sir. सारा इंटरव्यू कानों से सुनना है। तो आई डोंट वांट टू यूज योर विजुअल इनपुट्स, मैं चाहता हूं कि तुम अपने कानों से सुनो और जो डाउट आए तो वहीं पे पूछ लेना। तो लेट्स सी, Okay, sir. इंटरव्यू ऑफिसर आपके सीआईक्यू को कैसे पढ़ता है? क्या बोला? How to read the CIQ? हाउ टू रीड नहीं, इंटरव्यू ऑफिसर आपके सीआईक्यू को पढ़ के कैसे उसके अंदर से मीनिंग निकालता है। Okay, sir. आप कैसे Yes. पढ़ते भरते नहीं, आपने जो भरा उससे। कितना समझ में आया क्या बोला? Yes, Yes, sir. sir. पहला तो आप सुन लो, Yes, sir. ये जो पीआईक्यू है ये एक साइकोलॉजिकल मैप है। व्हाट इज इट? इट इज ए Psychological. Psychological map. साइकोलॉजिकल मैप है आपके जीवन का। ये कोई बायोडेटा नहीं है, मतलब इसके अंदर की घटनाएं वास्तविक घटनाएं हैं जो आपके जीवन में घटित हुआ है, ना कि काल्पनिक या उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख सकते। कितना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लो, व्हाट इज, इट्स अ साइकोलॉजिकल मैप। इसके अंदर आपने कुछ अनाप शनाप लिख दिया, आपको जवाब नहीं दे पाओगे। ओके, नाउ बिफोर द कैंडिडेट इज कॉल इनसाइड, नोट बनाना, जब ये लिखने की जरूरत नहीं, पॉइंट लिखना। कैंडिडेट इंटरव्यू ऑफिसर के कमरे में आने से पहले वो पीआईक्यू फॉर्म पढ़ता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और उसके बाद वो आपके बारे में एक हाइपोथेसिस बनाता है कि इस लड़के का क्या क्या, बोल रहा हूं देखना, इसका पर्सनालिटी क्या होने की संभावना है, जिस प्रदेश से आ रहा है, जिस माँ बाप का, जिस एजुकेशन से, जिस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है, जिस स्कूल का पढ़ा हुआ है, जिस तरह का इसका परसेंटेज है, जिस तरह का जॉब प्रोफाइल है, जिस तरह का इसका एज है और जिस तरह का इसका राइटिंग है, इससे इसका व्यक्तित्व किस तरह का होगा, इसका इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी लेवल क्या होगा, इसका एक्सपोजर का लेवल क्या होगा और इसका कंसिस्टेंसी क्या होगा, इसका अंदाजा वो पीआईक्यू से ही लगा लेता है। कितना समझ में आया क्या बोला? Yes, sir. नोट कर लिया Yes, sir. क्या क्या बोला? लाइकली पर्सनालिटी ट्रेट्स बेस्ड ऑन योर पेरेंट का बैकग्राउंड एंड स्कूलिंग बैकग्राउंड एंड समाज का बैकग्राउंड, जिस स्कूल से आ रहे हो, आपका एज और आपका जॉब प्रोफाइल, आपके पेरेंट्स का तनख्वाह, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आपका स्कूलिंग, इससे वो आपका साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी निकालने की कोशिश करता है और आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबीज एंड इंटरेस्ट से कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस देख एक अंदाजा लगाता है कि ये लड़का लड़की इस तरह से होंगे। नोट कर लिया? Yes, sir. एक अगला पॉइंट है, हर चीज जो आप पीआईक्यू में लिखते हो वो एक ट्रिगर पॉइंट होता है, उसके ऊपर प्रोबिंग किया जा सकता है। प्रोबिंग मतलब आपसे सबूत मांगा जा सकते हैं। जा Yes, सकता। इसका मतलब आपने Yes. कुछ भी अनाप शनाप लिख दिया, उसमें पकड़े जा Yes, सकते हो। नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इज, नाउ आपका नेक्स्ट कॉलम है आपका पर्सनल डिटेल्स एंड प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंस, करंट रेजिडेंस, ये सब है ना? Yes, sir. Yes, इससे क्या क्या निकालते हैं देख लो। इससे आपका ये देखते हैं कि आपका बचपन एक स्टेबल एनवायरनमेंट में हुआ है या एक ट्रांसफर एनवायरनमेंट में। जैसे मेरे पिताजी फौज में थे तो मेरा स्टेबल एनवायरनमेंट होगा, बार बार बदली वाला होगा, बदली वाला हो. बदली वाला। तो ये दिखाता है कि आपका बचपन एक स्टेबल एनवायरनमेंट में हुआ है या एक बदलाव वाले एनवायरनमेंट में। स्टेबल एनवायरनमेंट में आपका
कंडीशनिंग एक टाइप का होगा, और जो बार बार बदली हो रहा है वहां पे आपका एडेप्टिव स्किल ज्यादा होना चाहिए। है या नहीं ये पता नहीं, होना चाहिए। क्यों एडेप्टिव स्किल ज्यादा होना चाहिए? बिकॉज एज ए सर्विंग फौज के अंदर क्या एडोप्टेबिलिटी जानना चाहिए, नहीं, बार बार फौज के पोस्टिंग अंदर होना। क्यों? मेरी बेटी फौज में नहीं है, सिविलियन है, उसको 10 क्लास में 10 स्कूल बदल लिए, तो उसका मतलब सर। है हर 2 साल में नए दोस्त, नया माहौल, तो उसका ढाल पाने की क्षमता एक एक परमानेंट बच्चे से ज्यादा होना चाहिए। उसका फ्रेंड बनाने का Yes, sir. काबिलियत एक फिक्स बंदे से ज्यादा होना चाहिए। उसका इंटरपर्सनल स्किल्स ज्यादा डेवलप होने चाहिए, बिकॉज कॉन्स्टेंटली बदलाव हो रहा है, और वही चीज फौजियों के लिए। तो दोबारा बता रहा हूँ, Yes, आपका पर्सनल एंड रेजिडेंशियल डिटेल जो है ना, कॉलम परमानेंट Yes, एड्रेस, वो क्या दिखाता है कि आपका स्टेबिलिटी, आप फ्लक्चुएशन को कितनी जल्दी अडाप्ट कर पाते हो, और आपका लेवल ऑफ एक्सपोजर क्या है। जो बंदा जितना शिफ्ट करेगा उतना उसका एक्सपोजर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। बढ़ेगा। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंट मूवमेंट। ये फौजियों के लिए भी, सर्विस सेंटर के लिए, ये एक्चुअली आपके एडजस्टमेंट की एबिलिटी को दर्शाना चाहिए। लेकिन अगर वो एब्सेंट है, इसका मतलब आप अपने करंट प्रोफाइल में भी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो फौज में क्या करोगे? कितना समझ में आया? Yes, sir. यस सर। है ना? नहीं है सर। जो बच्चे हर 2-3 साल में स्कूल बदली कर रहे हैं, उनको शुरू शुरू में लगेगा, बाद में वो आदत हो जाता है, तो उनको फौज के माहौल में भी ढलना पड़ा। तो आपका एबिलिटी टू एडजस्ट और इनएबिलिटी टू एडजस्ट, इसको निकालना बड़ा आसान हो जाता है उसके लिए, और उसके ऊपर वो प्रोब करता है। नेक्स्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो है वो प्रोबिंग करता है, और ये देखना चाहता है कि आप ये जो जगह जगह बदले हो, स्कूल बदले हो, लोकेशन बदले हो, इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक क्या पड़ा, नकारात्मक क्या पड़ा? कितना समझ में आ रहा पूर्वा? Yes, sir. जैसे तो अभी इस अपने पुराने स्कूल से एएफपीए में आ गई, दैट्स कंप्लीटली चेंज। एएफपीए का माहौल बिल्कुल अलग है। तो वी वांट टू सी एएफपीए में आने के बाद तेरे साथ अच्छा क्या हुआ, तेरे साथ बुरा क्या हुआ, एडजस्ट कर पाए या नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग रोते रहते हैं। तो सेम फौज के बारे में, तो जितने भी आपके प्लेस ऑफ चेंज है, वी वांट टू सी उसका प्रभाव आपके ऊपर कैसा है। समझ में आया क्या बोला? yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, जो नोट बनाना। नेक्स्ट, फिर उसके बाद आता है आपका परिवार, मम्मी पापा, एज, क्वालिफिकेशन, उनका तनख्वाह कितना, उनका क्या है, तुम्हारा भी एज भी सब पूछते हैं, वो सब हम बाद में देखेंगे। नाउ फैमिली बैकग्राउंड और उसका एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि आपका फैमिली वैल्यूज क्या हो सकता है। जैसे हरियाणा का एक लड़का है, उसी जगह में एक लड़का केरला का है, एक लड़का महाराष्ट्र है, एज सेम है, लेकिन परवरिश और समाज अलग अलग तरीके से उसको ढालता है। यस नो? यस सर। Yes, sir. Yes, तो sir. हम देखना चाहते हैं कि जिस बैकग्राउंड से आप आए हो, जिस एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल बैकग्राउंड, आपके मम्मी पापा का रिश्ते की क्वालिटी भी आपके व्यक्तित्व को इन्फ्लुएंस करेगा। हम देखना चाहते हैं किन वैल्यूज के तहत आपको बड़ा किया है, आपके पर्सनल वैल्यू क्या होने चाहिए। और आपने देखे होंगे क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 थिंग्स यू लाइक इन यू, लाइक डोंट लाइक इन देम, ये सब क्या हो रहा है, यू वांट टू क्रॉस चेक दैट। सो इट रिवील्स फैमिली वैल्यू, योर पर्सनल वैल्यू, the sense of responsibility that has got developed in you by them, their parenting, and the samaj and their parenting style, इमोशनल मेच्योरिटी को भी दर्शाता है। तो अगर आपका मम्मी पापा का रिलेशनशिप स्टेबल एंड एक कंसिस्टेंट है, उसका प्रभाव बच्चों के व्यक्तित्व में आएगा। मम्मी पापा ही मारपीट करते, उसका भी असर बच्चे पे आएगा। कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, नोट sir. कर लो भैया, नोट कर लो, ये सब इंटरव्यू का क्वेश्चन है एक्चुअली। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो यही रोक देना, स्पेशली जो पेड बैच वाले। रामन, समझ में आ रहा है Yes, sir. ना? Yes. सर्विस सेंटर के केस में क्योंकि आप ऑलरेडी सर्विस में आ गए हो, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस का नेचर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बिकॉज आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गए और एक फौजी ढांचे Yes, में sir. चले हो, तो आपका प्रोबिंग गहरा होगा। Okay, sir. Yes, sir. आप देखो, अगर किसी का माँ बाप लड़ते रहते हैं, उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सर, पड़ेगा। definitely. पड़ेगा सर। उसी जगह माँ बाप बहुत हारमोनी में, सामंजस्य में, बहुत अच्छे लयताल में, उसका भी असर पड़ेगा। अगर बाप दारू पी के मारता, बाप की आर्थिक स्थिति आपके व्यक्तित्व को लॉन्ग टर्म इफेक्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट, पेरेंट का ऑक्यूपेशन, उनका इनकम, उनका लायबिलिटीज और उनका जो लाइफस्टाइल है, वो आपके जीवन में रियलिज्म को कितना समझते हो, हवा में कितना उड़ रहे हो। मतलब अपने अपने आर्थिक स्थिति को समझ के उसके अनुरूप आपका ग्रोथ हुआ है, या एक कर्नल साहब के बच्चे हो लेकिन निकम्मे निकल गए क्योंकि सब कुछ आसानी से मिल गया। कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो जिन आपके घर की अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो आपको बचपन से मेहनत करने की लगन की आदत लगनी चाहिए। नहीं लगी तो उसके बावजूद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी जगह में आप एक संपन्न परिवार से आते हो और आपका बच्चा बिल्कुल ही निकम्मा है, इसका मतलब वो बिगड़ गया।
तो हम देखना चाहते हैं किस तरह के आर्थिक परिवेश से हो। सर्विस सेंटर के केस में हम ये भी देखना चाहते हैं उस आर्थिक परिवेश में आपने पढ़ाई के साथ क्या किया और किन हालात में आप फौज में आए, हम वो देखना चाहेंगे। क्या वो आर्थिक स्थिति से आए हो या वो पढ़ने की निकम्मेपन जैसे बाबू सर की कहानी के कारण आए हो या किसी और रीजन से आए हो, हम वो देखना चाहेंगे किन हालात में आप फौज में आए हो। अगर आपका पढ़ाई अच्छा है उसके बाद भी आप फौज में आओ तो हम जानना चाहेंगे क्यों। आर्थिक स्थिति समझ में आता है, कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, नाउ पेरेंटल ऑक्यूपेशन इनकम, ये आपके यथार्थ के साथ कितने जुड़े हो, संघर्ष करने की आदत लगी है या नहीं लगी है, कंफर्ट जोन में हो या नहीं है, ये सब पता चलता है। अब मुझे बताओ, एक लड़का जिसका बाप कर्नल है और एक लड़का जिसका बाप किसान है, दोनों बच्चों का अभी का परफॉर्मेंस सेम है, कौन बच्चा एकेडमी में जाने से ज्यादा बेहतर करेगा? कर्नल साहब का बच्चा है किसान का बच्चा? किसान का किसान का बच्चा, क्योंकि वो आभाव में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इससे हम तुम्हारी ट्रेनेबिलिटी डिसाइड करने में मदद मिलता है। ट्रेनेबिलिटी, हाउ ट्रेनेबल आर यू। ओके, नेक्स्ट है, अगर आप यहाँ पे अपने ज्यादा बड़ा चढ़ा के कर दोगे, ब्लफ कर दोगे, मतलब सट्टा मार दोगे, तो इमोशनल प्रोबिंग में आप खुद जाओगे, आपकी खुदाई हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा जवाब क्या देना। सो सट्टा मारने को तो मार दोगे, कहां फंसोगे? जब वो सट्टे पे अगर उनको नजर आ गया और उस पर जब खोद देंगे, प्रोब करेंगे, उसको आप सह नहीं पाओगे। कितना समझ में आ रहा है? Yes, यस sir. सर तो इसको जब कल हम इस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे और साइकोलॉजिकल टेस्ट के साथ करेंगे, तब देखेंगे कि आप बोल क्या रहे हो क्या रहा है। तो टुमारो वंस वी स्टार्ट द साइकोलॉजिकल टेस्ट, तब हम देखेंगे CIQ में क्या हो रहा है, SD में क्या लिख रहे हो और TAT में क्या हो रहा है। देन यू विल फाइंड देयर इज अ गैप, इनकंसिस्टेंसी। हम उन इनकंसिस्टेंसीज का कारण को समझना है और उसे फिक्स करना है। और फिक्स करने का मतलब रेस्पॉन्स के लेवल पे नहीं, खुद को पर्सनल अपने आप को समझ के उसको ठीक करना है। कितना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज एजुकेशनल रिकॉर्ड और उसका इंटरप्रिटेशन। नाउ ये चीजें मैं काफी गहराई में बता रहा हूँ, लेकिन फॉर्म भरने का तरीका अंडरस्टैंडिंग PIQ वीडियो में है, तो मैंने ऑलरेडी आपको नोट कर। नाउ एजुकेशनल रिकॉर्ड में आपके मार्क्स 95 10th में है, 62 12th में है और 47 12th में है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नॉट मार्क्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कंसिस्टेंसी। कि मतलब क्या आप कंसिस्टेंट हाई परफॉर्मेंस हो, कंसिस्टेंट लो परफॉर्मेंस हो, या लो से हाई की तरफ जा रहे हो, या हाई से लो की तरफ जा रहे हो, या एवरेज एवरेज। हम देखना चाहते हैं कि आपका लाइफ का ग्राफ चल कैसे रहा है। कितना समझ में आया? Yes, sir. Yes. अभी देखो, मैं 3 कंडीशन बताता हूं, आप बताना कौन सा बेहतर है। एक है, एक लड़का है कंसिस्टेंट हाई चल रहा है, एक लड़का कंसिस्टेंट लो चल रहा है, एक लड़का कंसिस्टेंट मीडियम परफॉर्मेंस चल रहा है, एक लड़का है हाई से लो पे जा रहा है और फिर थोड़ा ऊपर उठता है फिर लो पे जा रहा है, मतलब इनकंसिस्टेंट। एक है लो से कभी हाई जाता, कभी लो आ रहा, हाई जा रहा, हाई। दिख रहा क्या बोल रहा हूं? Yes, So, sir. Yes, sir. more than marks, what matters is consistency of your performance. और वो कंसिस्टेंसी में भी कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, हाई में, लो में, मीडियम में, या इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है तो बहुत सवाल आएंगे, लो है तो सवाल नहीं आएंगे, बेवकूफ है, हाई है तो सवाल नहीं आएंगे बिकॉज कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, मीडियम है तो सवाल आएंगे उठा क्यों नहीं रहा, लो से हाई से लो चला गया तो सवाल आएंगे नीचे क्यों घुस गया, लो से हाई चला गया तो सवाल आएंगे पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रहा है, क्या गलती है, क्या। इतना समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. अब अपना ग्राफ देख लेना, जैसे मेरा ग्राफ देखो, मैं बता रहा हूँ 53.73 10th, 42% 11th, 12th ड्रॉप आउट। ये कंसिस्टेंट हाई है, कंसिस्टेंट लो है, या लो से गड्ढे में चला गया? कहाँ गया पूर्वा? सर लो से गड्ढे में। तो सवाल तो आएंगे, सवाल क्या आएंगे? मेरे को तो वैसे ही आई एम रिजेक्टेड पीस। इस मामले में NDA वाले बड़े अच्छे हैं क्योंकि उनका साला अभी 10th ही हुआ, अभी 12th तो दे रहे हैं, या ज्यादा से ज्यादा 12th दे दिया। जैसे जैसे आपका एज जाएगा ऊपर, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ जाएगा, और ये CIQ अगर आपका कंसिस्टेंट लो परफॉर्मेंस है, इसमें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि बाबू सर का ऐसा क्या था, 53.73, 12th में 42, सॉरी 11th में 42, 12th ड्रॉप आउट, फौज में आया, फिर फौज में 58, और उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। बाबू सर ने ऐसा क्या किया, दैट वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग। पिछले बार किया भी, इस बार भी देखेंगे। तो पढ़ाई में अगर पीछे कोई गड्ढा खोद दिया, उसको करेक्ट नहीं कर सकते। क्या बोला हर्षिता?
पढ़ाई में अगर आपने पीछे कोई गड्ढा खोदा है उसे भर नहीं सकते। क्या बोला? सर जो पास्ट में अपन ने रिजल्ट है अपन उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका अच्छा है तो बच गए आप। अब बाबू सर क्या करेगा, साला ड्रॉप आउट है, उसको थोड़ी ना ठीक कर सकता हूँ। लेकिन पास्ट का मिस्टेक अगर बार बार रिपीट हो रहा, पैटर्न में आ जाएगा और वहां आपको रगड़ देंगे। और बाबू सर का नेगेटिव पैटर्न है, पॉजिटिव पैटर्न दिख रहा है? पूर्वा नेगेटिव पैटर्न है, यानी कि मेरा पीआईक्यू एक वीक पीआईक्यू है। कितनों का वीक पीआईक्यू दिख रहा है? आप जल्दी बताओ। या यस सर। तो आपका इसका मतलब है एक 20-22 साल का लड़का अगर उसका आर्थिक स्थिति अच्छा है, इसका मतलब उसको सिर्फ पढ़ाई करना और कुछ नहीं, पढ़ाई खेल कूद करना है, और उसके अंदर उसका इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का मतलब है आर्थिक स्थिति अच्छा होते हुए भी जो काम करना है उसने ढंग से नहीं किया और करेक्शन भी नहीं किया। इसका मतलब 25 साल का वो जो फ्रेमवर्क है उस फ्रेम में आपका परफॉर्मेंस जो होना चाहिए आपके आर्थिक स्थिति और आपके परिवेश में बिलो मार्जिन। मेरा पिताजी सर्विंग सुविधा मेजर थे, परिस्थिति प्रॉब्लम नहीं था, मनस्थिति का प्रॉब्लम था। कितना समझ में आ रहा है? यस तो आप मरोगे तो आपका प्रोबिंग में आपको समझ में नहीं आएगा क्या जवाब दे। दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी गेट IQ CIQ, उसके ऊपर जब बात करेंगे। वी ऑलरेडी डन इट एंड विल कंटिन्यू डूइंग दैट। नेक्स्ट इज सडन जंप और ड्रॉप, मतलब नीचे से अचानक ऊपर चला गया, अचानक नीचे चला गया। दिस विल बी क्वेश्चनड, दे विल इनवाइट प्रो। कितना समझ में आ रहा है? यस 98, 62, 57. This will be questioned. 98, 89, 87. This will not be questioned because this is consistently high. 47, 49, 51. This will again be not questioned because गधा था, गधा है, गधा ही रहेगा। और किसी की इम्प्रूव हो रही है सर तो इंप्रूव हो रहा है तो भी जानना चाहेंगे पहले क्या हुआ, अब क्यों हो रहा है। बिकॉज वी वांट टू सी इस इंप्रूवमेंट के या ड्रॉप के पीछे हाउ अवेयर आर यू। पूरा गेम है अवेयरनेस। विल डिस्कस। विशाल, पिछले बीच जो पहले नागपुर जाने से पहले जो बात हुआ तो उससे समझ में आ रहा है? हाँ कनेक्ट हो पा रहा? क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। और कहीं पे भी आपने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट बताया तो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट को आपको प्रोसेस से डिफाइन करना पड़ेगा। हाउ डिड यू अचीव? प्रोसेस का मतलब कैसे अचीव, कैसे किया। कैसे किया। जैसे तुम वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन में बॉक्सिंग में मेडल मिला, विल लाइक टू नो व्हाट वाज द प्रोसेस। क्योंकि तुमने किया है, तुम्हें प्रोसेस एक्सप्लेन करना आराम से हो जाएगा। जिसने ब्लफ मारा है, जिसने सट्टा मारा है, वो प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। जिसने वो जो कोचिंग में जाके अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स कर देता है, ये लिख दो वो लिख दो, वो लिख तो देगा लेकिन प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने किया ही नहीं है। जो बंदा, मान लो पूर्वा तू साला प्लेन में बैठ के एक बार यूएस से जाके 3 दिन वहां गई और वापस आ गई, और एक बंदे ने ऐसे लिख दिया मैं 3 दिन के लिए यूएसए गया था। कौन यूएसए जाने के पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर पाएगा? पासपोर्ट से लेके, वीजा से लेके, क्लियरेंस से लेके, एयरपोर्ट प्रोसेस से लेके, कितने घंटे का फ्लाइट था, खाना कहाँ चैलेंज किया, वहां के एयरपोर्ट में कस्टम का वो, फिर क्या हुआ, और सट्टा मारने वाला या जो 2 दिन के लिए गया, कौन बोल पाएगा? जो 2 दिन के लिए गया। इसके लिए इसका मतलब है सट्टा मारोगे, पकड़े गए, प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं कर पाओ। यस सर। और किसी ने जिसने छोटा अचीवमेंट है लेकिन किया है, वो प्रोसेस एक्सप्लेन कर देगा। कल से देखेंगे ये चीज क्या है। नेक्स्ट इज आपका फिजिकल डेटा। भैया आप अपना एज, हाइट, वेट, सेंटीमीटर में, मीटर में, आइडल वेट सब क्या देख लो, कितना ओवरवेट, अंडरवेट, क्यों ओवरवेट हो, क्यों अंडरवेट हो, उसके ऊपर क्या काम कर रहे हो वो देख लेना, जो उस तरह का वेट में आगे पीछे जा रहे हो। तो अपना वेट एंड उसी के साथ में ऑक्यूपेशन है ना, फिजिकल देते हैं वो डेटा देगा ना पीछे के पेज में, है ना। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्शन वो सब आप देख लेना भैया। डेसिमल 100 से डिवाइड करना है। नाउ अगर आपका बॉडी का वेट जरूरत से ज्यादा ±10 एक्सेप्टेबल है, ओवरवेट है, तो वो जानना चाहेगा इसको कैसे बढ़ाइए और इसको नीचे लाने के लिए क्या कर रहे हो, और कोई एक्शन नहीं कर रहे हो तो आप फौज में जा रहे हो और आप अपने फिजिकल कोशंट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। वो वैसे भी मेडिकल वाले भी पकड़ लेंगे और एसएसबी वाला भी। अगर विजिबली आप ओवरवेट हो या अंडरवेट हो तो फिर भी बाकी को, ओवरवेट वाले ज्यादा फंसते हैं, अंडरवेट वाले हो सकता है मेडिकल रिजेक्ट हो, बाकी खाना खाता हूँ वजन ही नहीं लग रहा। कितना समझ में आ रहा है? सो फिजिकल एक्टिविटीज आपका, व्हाट यू डू ऑन ए हॉलीडे, वर्किंग डे, फिजिकल एक्टिविटीज। अगर आप खेलते कूदते नहीं हो, अगर आपको पीटी पुटी करना, दौड़ भाग करना पसंद नहीं है, काय को फौज में जा रहे हो? यू विल नॉट बी एबल टू अंडरटेक द ट्रेनिंग ऑन द फिजिकल डोमेन। फिजिकल डोमेन कमजोर होने के कारण आपका मेंटल डोमेन वीक हो जाएगा। कितना समझ में आ रहा है? यस सर।
Yes, तो sir. Yes, आप sir. अपना देख लेना फिजिकल हाइट वेट एंड उसके ऊपर क्या काम कर रहे हो वो आप देख लेना, विल डिस्कस। नेक्स्ट इज बॉडी अवेयरनेस। बॉडी अवेयरनेस मतलब आपका बॉडी का बैलेंस, जीटीओ में देखते हैं वो सब, तो ये पीआईक्यू जीटीओ के पास नहीं होता, बट यू आर एक्सपोज टू फिजिकल डायमेंशन इन द जीटीओ टास्क, विल गेट दैट। नेक्स्ट आ जाता है जॉब। नाउ जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए है, जो लोग जॉब नहीं कर रहे उनके लिए मतलब नहीं है। जो लोग जॉब नहीं कर रहे बट गैप लेके बैठे हैं एजुकेशन में, गैप विल बी क्वेश्चन, नोट कर लो। कोई है यहाँ पे गैप वाला? सर क्लास 12 के बाद था, जॉब वाला तो नहीं है। हाँ, तो क्लास 12 के बाद क्यों लिया है और उस गैप का कैसे इस्तेमाल किया है वो उनको पता है ना। कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन अगर क्लियर नहीं किया तो गैप लेके क्या फायदा हुआ? इसका मतलब है एफिशिएंसी लो रहा और 1 साल बर्बाद कर दी। मतलब एक आदमी एक साल का गैप लेके अगर एनडीए रिटर्न सीडीएस क्लियर नहीं किया तो आपका एफिशिएंसी पर सवाल आता है, और लोग यहाँ पे बिना ब्रेक लिए बिना कोचिंग लिए क्लियर कर जाते हैं, और तुम 1 साल के बाद भी नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो 1 साल क्या किया सवाल आएगा। ऊपर से करंट अफेयर्स नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, डिफेंस का नॉलेज नहीं है, इसका मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो उसकी समझ नहीं है, तो कुल मिला के करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो जाएगा, तो गैप विल बी क्वेश्चनड। सर एक गैप ग्रेजुएशन के बाद भी है, बट वो वो प्रोफेशनल रीजन डबल गैप है, तो अगर वो उसी रीजन से है तो उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। मैं अगर इंटरव्यूइंग ऑफिसर का बाकी सब छोड़ो, इस पे क्या किया पूछूंगा, 2 साल तुमने अपने लाइफ का क्या किया है, आई डोंट नो, तुमसे पूछा होगा। अगर मैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर होगा बाकी सब बता हटा, इस 2 साल में क्या अचीव किया, देन यू विल क्लियरली नो हाउ फोकस्ड आर यू। इट कैन बिकम ए बिग ट्रैप। इससे बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका यह है कि इस गड्ढे को तो चलो देखेंगे, बाकी चीजों को इतना उठा दो कि वो इसको इग्नोर कर दे। ओके विल सी वो क्या है, रेगुलर क्लास में हम देखेंगे। मेरे केस में देखो यार, मेरे केस में तो महागड्ढा है। 53 42 11th में, 11th का कोई बताता भी नहीं है, 12th ड्रॉप आउट, उसके बाद फौज में जवान बन के किया, उसके बाद 4 साल के बाद 12th किया, उसके बाद एसीसी रिटर्न, उसके बाद ऑफिसर बनने चला गया। गड्ढा नहीं है, महागड्ढा है। हाउ डू आई एक्सप्लेन इट? So there is a way to explain it, but only explaining will not work. They have to seek correction, क्योंकि correction तो हुआ ही नहीं है ना मेरे केस में। मैं तो बार बार नीचे ही जा रहा हूँ, तो मैं ये भी नहीं बोल सकता था कि मैं देश सेवा के लिए फौज में ज्वाइन किया, मैं ये भी नहीं बोल सकता था मैं आर्थिक तंगी, क्योंकि मेरा बाप तो जुबेदार मेरे साथ था, तो मैं तो फंस गया। तो इस तरह के जो जबरदस्त गड्ढे हैं, गैप्स है, तो दो क्या, इसको ये पता भी नहीं चलेगा, वो आपके अगेंस्ट में चला जाएगा अगर कुछ और चीजों को हमने लिफ्ट नहीं किया। तो सट्टे का स्कोप खत्म हो जाता है गैप वालों का। साला गैप भी है और सट्टा भी मार रहा है, और ये भी बोल रहा है कि मुझे पता नहीं चल रहा मैं कहां पे बार बार आउट हो रहा हूं। इसका मतलब है इंट्रोस्पेक्शन भी नहीं हो रहा, रिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा, रिपीटेटिव मिस्टेक हो रहा है। सो मिस्टेक्स की क्लासिफिकेशन है, रिपीटेटिव मिस्टेक, उसके अंदर एरर ऑफ जजमेंट, एरर ऑफ इंटेंट एंड रिपीटेटिव मिस्टेक। तो एरर ऑफ इंटेंट माफ नहीं किया जाएगा। विल सी ये सब क्या है आगे देखेंगे। नाउ इन्फ्लेटेड जॉब रोल, लोग अपना होते हैं साले 12,000 का नौकरी, उसको बनाते 27,000 का, 24,000 का, बड़ा बड़ा पोस्ट लिख लेते हैं। आपको जो लिखना लिख दो यार, बट व्हाट विल, कैसे फंसोगे? दे विल गेट इनटू द जॉब प्रोसेस के ऊपर। आपका स्कोप ऑफ वर्क, उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करो, और डेली वर्क शेड्यूल को एक्सप्लेन करो, रिपोर्टिंग एक्सप्लेन करो, आपका जॉब का इम्पैक्ट को एक्सप्लेन करो, रिपोर्टिंग चेन एक्सप्लेन करो, ऑर्गेनाइजेशन का गोल एक्सप्लेन करो। मतलब आपको फंस जाओगे भैया। अगर आपने एक टाइटल लिखा है, अगर मैं बोलूं मैं आर्मी में मेजर हूं, तो आपको मेजर का जॉब प्रोफाइल तो पता होना चाहिए ना, और रटने से भी नहीं चलेगा, वो आपको खोद देगा। तो अगर मैं लेफ्टिनेंट हूं और मैं बोलूं मैं मेजर हूं, आई विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई मेजर का रोल, बिकॉज मुझे तो आता ही नहीं है। तो जो लोग फालतू का बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं, जॉब में तनख्वाह बढ़ा देते हैं, लेकिन जस्टिफाई प्रोसेस में फंस जाओगे, प्रोबिंग में। तो आप देख लेना क्या बोलने वाले हो। जैसे विशाल है यहाँ पे, वो साला इंटरनेशनल लेवल का बॉक्सर है। अब वो बॉक्सर है, मैं भी डाल दूं मैं भी नेशनल लेवल का बॉक्सर हूं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, प्रोसेस में फंस जाऊंगा, प्रोबिंग में फंस जाऊंगा। सट्टा मारोगे, आप लिख दो हॉबी बुक रीडिंग है, प्रोबिंग में फंस जाएगा, कौन सा बुक। सो रियल वर्क जो है, रियल जब आप वास्तव में जो कर रहे हो वो लिखते हो, तो ये सर्वाइव हो जाएगा, सर्वाइव कर लेगा प्रोबिंग में। क्या बोला? अगर आप कारगिल में एक्चुअल लड़ाई में गए हो और एक बंदा का यूनिट गया, वो छुट्टी पे था, लेकिन वो भी बोल दे मैं भी यूनिट में गया था कारगिल में, कौन सर्वाइव करेगा? Who is answerable? जो गया था। नो, जो गया है, क्योंकि उसको सब कुछ पता है ना। जो नहीं गया वो तो सट्टा मार रहा है, वो तो ऐसे सुनी सुनाई बता रहा है। मेरा यूनिट से 10 बंदे सर्जिकल स्ट्राइक में गए, मैं नहीं गया, मेरा यूनिट गया। अब वो जब वापस आए, उन्होंने मुझे बहुत सारी कहानी सुना दिया, वो बोल के मैं भी बोल दिया सर उस ग्रुप में मैं भी था, बोल तो दिया, बट कैन आई सर्वाइव द प्रोबिंग? नो सर, नो सर।
कौन No. सर्वाइव करेगा? जो साला वहां जाके गोली खा के आया वो सर्वाइव कर जाएगा। सो यहाँ पे Yes. खतरा जवाब का नहीं है, खतरा है उस जवाब के ऊपर प्रोबिंग का। तो CIQ इज नॉट खतरा, द रियल खतरा इज उस CIQ के जवाब पे जो प्रोबिंग आएगा, जो हमने पिछले बार जाने से पहले विशाल किया था। यस सर। उसका समझ में आ रहा फायदा? हाँ सर। और प्रोबिंग यहाँ का जो मतलब अपना अप्रोच टू ट्रेनिंग का है कि आप अपना प्रोबिंग खुद निकाल सकते हो जब आपको अपनी कहानी पता होगी। और एक्चुअली जब आपने किया है तो आपको प्रोबिंग की चिंता ही नहीं करना। क्यों नहीं चिंता करना? आपको पता है आपको क्या किया आपने। चिंता तो उसको करना जो सट्टे मार रहा है। तो रियल वर्क विल सर्वाइव प्रोबिंग। नोट कर लिया? यस सर। Yes. यार ये बताओ, इस क्लास से कुछ फायदा हो रहा है? Yes, sir. क्या Yes, फायदा हो रहा है? sir. क्या फायदा? पूर्व क्या फायदा हो हो रहा है साहब. Sir, we are getting to know in detail about the SSB, and moreover, sir, we are getting to know about our EQs or whatever we have to, sir, go in depth for the SSB. It's not SSB. It is about you. ये सब किसके बारे में? पूर्वा के बारे में। Yes, sir, we are getting aware that we should know about ourselves only. अरे तुम जैसे इंटरव्यू में जा रहे हो भैया, उस इंटरव्यू का सिलेबस है तुम्हारा लाइफ। उस इंटरव्यू का सिलेबस है तुम्हारा लाइफ। खत्म बात। TAT WAT नहीं है, तुम्हारा लाइफ इज द सिलेबस। अपने लाइफ को ठीक कर लो, जहां गड़बड़ है उसको समझो, उसको फिक्स करो। अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल वीक है तो पूछेगा इसके ऊपर काम क्या किया। कुछ भी काम नहीं किया पूछेगा क्यों नहीं किया। सर लगा ऐसे ही निकल जाएगा। क्यों लगा ऐसे ही निकल जाएगा। करंट अफेयर्स वीक है पूछेगा इसको ठीक करने के लिए क्या किया। कुछ नहीं किया पूछेगा क्यों नहीं किया। वेयर इज द ब्रेड्थ एंड डेप्थ, वेयर इज टी लीडरशिप। जो Yes, sir. आदमी खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहा वो दूसरों को कैसे करेगा, ये सवाल आएगा। एंड यू विल बी किक्ड आउट। कितना समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आ जाओ NCC ट्रेनिंग, स्काउट्स गाइड, NCC ABC सर्टिफिकेट, एयरफोर्स नेवी आर्मी। तो भैया आपको NCC के बारे में, DG NCC कहाँ है, कब बना था, क्यों बना, उसका मिशन क्या था, उसका विजन क्या है, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी क्या है ना। एंड देन NCC में जाने के बाद आपका जो एक्सपोजर है, उस एक्सपोजर से आपके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन आएगा, उनका इंटरेस्ट वो है। नॉट आपने आरडी परेड में आज ड्रिल किया ऐसा। वो देखना चाहते हैं अगर पूर्वा NCC में 4 साल रही थी, पूर्वा के व्यक्तित्व में उसका क्या प्रभाव पड़ा। हैज पूर्वा बिकम मोर डिसिप्लिन? AFPA में जाके हैज पूर्वा बिकम मोर डिसिप्लिन और इज शी द सेम लेजी इडियट गर्ल दैट शी वाज अर्लियर? अगर कोई बदलाव ही नहीं हुआ तो फिर वेयर इज योर ट्रेनेबिलिटी? जो आदमी 2 साल AFPA में रह के कुछ भी नहीं बदला, वो साला आप क्या उखाड़ लेगा। जो आदमी फौज में रह के एक अपने कंपनी कमांडर 2IC CO के पास जाके उसको पता भैया उधर जाके मुझे प्रिपेयर करके जाना है, वो एक मेजर जनरल के पास अनप्रिपेयर्ड जाता है, कहाँ है उसका प्रोफेशनलिज्म। आपका कमांडिंग ऑफिसर बुला लेता है, आप सेक्शन कमांडर, आप पूरे सेक्शन का हिसाब किताब ले जाते हो और आप इंटरव्यू में जाते हो, उनके पास इतनी ताकत है कि एक सिपाही को ऑफिसर बना सकता है, वहां अनप्रिपेयर्ड जा रहे हो, तो आपका प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं यार। आप जहां वहीं रहो। एक बुक है व्हाट गॉट यू हियर विल नॉट गेट यू देयर। मतलब जिस माइंडसेट से आप अभी पहुंचे हो, जहां पहुंचे हो, उस माइंडसेट से आप आगे नहीं जा सकते, है ना। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, माइंड इज नॉट द प्रॉब्लम, माइंडसेट इज द प्रॉब्लम। यू हैव टू चेंज इट यार। एंड चेंज करने के लिए आपको वो पता चलना चाहिए व्हाट आर दोस रिस्ट्रिक्टिव माइंडसेट जो मुझे आगे जाने की बजाय पीछे ले रहा है। पीछे खींच रहा है। कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। So check your exposure to military discipline and see how has it affected you. NCC के कुछ core values है, क्या वो core value आपके personal value के साथ कुछ थोड़ा बहुत align हुआ, या अब भी चोरी चकारी पे चल रहे हो, झूठ पे चल रहे हो, इंटरव्यू में जाके सट्टे मार रहे हो। एक फौजी हो और एक मेजर जनरल के पास जाके जवान से ऑफिसर बनने के लिए उसको झूठा CIQ सुना रहे हो। ये कहाँ से सीख के आए हो? कितना समझ में आ रहा है? Yes, Now, yes, sir. आप NCC में, अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में, फौज में, प्लाटून में, रिक्रूट ट्रेनिंग में कुछ भी फेक लीडरशिप, सर मैं अपने स्क्वाड का मॉनिटर था, सर मैं NCC में अंडर ऑफिसर था। अरे भैया वो लीडरशिप टाइटल नहीं चाहिए, वो ये देखना चाहिए कि उस टाइटल के बदौलत आपका इन्फ्लुएंस क्या था। क्या था? Influence. या मतलब अगर Influence क्या था? मैं सेक्शन कमांडर हूँ, नायक हूँ, मेरे नीचे 7 लोग हैं, तो मैं उस सेक्शन कमांडर, तो टाइटल है, पोजीशन है, उस टाइटल का इस्तेमाल करके प्रभाव क्या पड़ा आपके छोटे से सेक्शन पे। जैसे मैं कंपनी कमांडर हूँ, क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास तो ले रहा हूँ, लेकिन इस क्लास का प्रभाव क्या पड़ रहा है आपको। क्या मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ या आपको ज्यादा कंफ्यूज कर रहा हूँ? अगर क्लैरिटी नहीं दे रहा हूँ, कंफ्यूजन दे रहा हूँ, आई एम इनइफेक्टिव। बस एक GTO का टाइटल लेके घूम रहा हूँ, कर्नल साहब झूठ सिखा रहा हूं आपको, ये छुपा दो वो छुपा दो। नो, इस क्लास का आप देखो, बाबू सर के इस क्लास का
आपके सोच के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, नकारात्मक? क्या बाबू सर आपको झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि आपके कमियों को रख के ऑफिसर बना देंगे, या आपको ये बता रहे हैं इन कमियों को ठीक करके ऑफिसर बनना है, इसमें मेहनत है? क्या करवा रहा बाबू सर? सो डोंट सी बाबू सर का रैंक, डोंट सी बाबू सर का पोजीशन, डोंट सी बाबू सर जीटीओ है, डोंट सी बाबू सर बढ़िया स्लाइड बनाते हैं। व्हाट यू टू सी इज बाबू सर का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर क्या पड़ रहा है और उससे आपके माइंडसेट में क्या असर आ रहा है, सकारात्मक नकारात्मक। पूर्वा क्या समझ में आया बेटा? पूर्वा बोलने में तेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा, मल्लू बोलने में मन कर रहा है। Sir, बोल दो मल्लू. I have no problem, sir. इवन Sir, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम कॉल यू मल्लू। हाँ बोल। I learned that leadership rank doesn't matter. What matters is what influence you are having on other Yes. people. And yes, यस, तू क्लास की मॉनिटर होगी, तू स्कूल की कैप्टन होगी, तू अपने हाउस की कैप्टन। आई डोंट केयर। व्हाट आई वांट टू सी इज व्हेन पूर्वी इज मेड द हाउस कैप्टन, तेरा उस हाउस कैप्टनसी का असर तेरे हाउस में क्या है? yes, sir. एंड हाउ डू यू कंडक्ट? डू यू कंडक्ट बाय इन्फ्लुएंस या बाय गुंडागर्दी? यस सर, Yes, sir. या तेरा हाउस कैप्टन होना या ना होने से हाउस में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा? मैं सार्जेंट तो बन गया एयरफोर्स में, लेकिन मैं सार्जेंट हूँ, कोई पूछता नहीं है मुझे, ना मैं कोई बोलता हूँ, ना मेरा कोई असर है, बस सार्जेंट है, तनख्वाह मिल जाती है। देन यू आर इनइफेक्टिव सार्जेंट। Yes, sir. So, leadership position, NCC, Scouts, Guide, B certificate, A, we want to see the influence. And वो influence तो आपके इंटरव्यू में आएगा जब आप बोलोगे, और आपके बोलने से either I'll get influence or I'll get irritated. जब आप मुंह खोलोगे इंटरव्यू में, साइक में, जीटीओ में, पीपीएनडीटी में, एज अ जीटीओ either I'll get influenced by you कि यार क्या जबरदस्त बोलता है, या I'll get irritated, कहाँ से आ गया ऑफिसर बनने? तो आप जब मुझे झूठ बोलोगे और मैं पकड़ लूंगा, डू यू थिंक आई विल गेट इन्फ्लुएंस? आई विल एक्सपोज यू। तो मुझे आपको समझ में रहा है? इस क्लास से आपको एक आईना दिख रहा है? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. तो Yes. आपका सर्टिफिकेट मस्ट मैच विथ योर डेप्थ ऑफ नॉलेज एंड ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज। तो अगर आप विक्रम सार्जेंट है एयरफोर्स में विद 7 years ऑफ सर्विस और 10 years सर्विस, I want to see that 7 year का breadth of knowledge and 7 year का depth of knowledge, domain knowledge, अपना trade का knowledge, अपने organization का knowledge. So know your armed forces. There's a video. पिछले 2 बार का बैच से फर्क पड़ा वो चीज में विशाल, विक्रम? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. करने से पड़ेगा, करने से। Yes, sir. खोखले आते हैं कोचिंग में, खोखले रह जाते हैं और खोखले बन के चले जाते हैं। ये क्या ट्रेनिंग है यार? पूर्वी समझ में आ रहा बेटा? Yes, sir. तुम लोगों के स्कूल में तुम्हारे साथ में 3 दिन था, उस 3 दिन में तुम्हारा दिमाग का ढक्कन खोले नहीं खोले? Yes, sir. खुला, sir. खोला। तो वो उस 3 दिन का असर तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे अप्रोच में, तुम्हारा माइंडसेट में अगर नहीं पड़ा, तो गणेश बाबू इज इनइफेक्टिव। तो आगे अपना बोल बाल के चला गया। तो उसी तरह से तुम जब इंटरव्यू दोगे, तुमने मुंह खोला तो तुम्हारे मुख से सरस्वती निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? Saraswati. Saraswati. सरस्वती को निकालने के लिए पहले सरस्वती को धारण करना पड़ेगा, और सरस्वती को धारण करने के लिए रगड़ा मारना होगा। लेकिन आपका एटीट्यूड ही टिप्स एंड ट्रिक्स, शॉर्टकट, अमेजिंग, एसडी, ये सब होगा तो कहां से सरस्वती निकलेगी? सो व्हेन आई स्पीक, आई मस्ट ऐड वैल्यू टू यू। तुम जरा सट्टे पे चल रहे हो, कहानियां रट रहे हो, WAT रट रहे हो, कर क्या रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? सो नॉलेज हैज नो मीनिंग, योर क्लेम्स मस्ट मैच योर परफॉर्मेंस। क्या बोला? Claims Your must claims match must performance. match your performance. जो आप क्लेम कर रहे हो वो आपके परफॉर्मेंस से मैच करना। इंटेंशन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें एक्शन चाहिए। क्या बोला? They need They action. want action, sir. दे वांट एक्शन। तो आप ऑफिसर बनना चाहते हो, आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है, उसे पाने के लिए एक्शन क्या लिया वो पूछेंगे। जब आप लिखोगे मैं 3 बार रिपीटर हूं, तो ऑब्वियस क्वेश्चन इज व्हाट वेंट रॉन्ग? सॉरी सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या किया सर? मैं इधर गया, वहां कहानियां सब ठीक किया सर, दूसरे में गया, उधर भी कहानियां ठीक किया। खुद को वो क्या होता है? सो इंटेंशन चाहिए, बट इट्स नॉट एडिक्वेट। इट हैज टू बी बैक्ड अप विद Preparation, sir. एक्शन। एक्शन में डायरेक्शन चाहिए, वरना एक्शन तो गधा भी करता है। कितना समझ में आ रहा संदीप? Yes, sir. पॉसिबल है, लेकिन कोई ऐसा बंदा चाहिए जो आपको जीपीएस की तरह मार्ग दिखाए। चलना आपको पड़ेगा, वरना आप फुटबॉल खेल रहे हो, गोल पोस्ट कहाँ पता नहीं। सो सर्टिफिकेट लेके घूमने से चलेगा नहीं। दैट सर्टिफिकेट शुड बी बैक्ड अप विद परफॉर्मेंस। कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, विक्रम, sir. कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. नाउ गेम, स्पोर्ट्स, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, ये एक ऐसा जगह है जहां पे ज्यादा लोग सट्टा मारते हैं। कुछ लोग हैं विशाल जैसे जो ऑलरेडी इंटरनेशनल प्लेयर है, हरिकेश था। कुछ लोग होते हैं जो एक्चुअली करते हैं, ज्यादातर इसमें ब्लफ मारते हैं ना। देखो, अगर आप आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो समझ में आता भैया आपका स्पोर्ट्स, गेम, हॉबीज, जिसका ठीक है वो भी नहीं है,
कच्चा बादाम से ऊपर नहीं जा रहा है, वो रील ही देखता रहता है, तो भैया आप मरोगे यार। सो बिगेस्ट ब्लफ का एरिया कौन सा कॉलम है? गेम, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबीज एंड इंटरेस्ट। गार्डनिंग है, गार्डनिंग का जी भी नहीं पता। सो जिनका नहीं है, वी विल सी इसको क्या करना है, कम समय में क्या एक ऐसा चीज है जिसको शुरू करके बोल सकते हैं कि सर पिछले टाइम तक तो नहीं था, पिछले 6-7 महीने से शुरू किया है, इससे पहले नहीं था और अब ये है। ना कि ब्लफ मारो। और इस एरिया में जिन लोगों का गैप है, जिन लोगों का करंट अफेयर्स वीक है, जिन लोगों का पढ़ाई इनकंसिस्टेंट है, ऊपर से यहाँ पे ब्लफ मारता है, यहाँ पे वो अपने ही टांग पे कुल्हाड़ी मार देता है। और यहाँ पे सच बोल के भी फायदा नहीं है कि सर मेरा कोई हॉबीज एंड इंटरेस्ट नहीं। भाई तू पढ़ता भी नहीं है, तू गैप भी लेता है, तू साला करंट अफेयर्स भी नहीं करता, तेरा कोई हॉबीज है, तू करता क्या 24 घंटे का? तो पूछते हैं व्हाट इज योर वर्किंग ऑन ए वर्किंग डे, ऑन ए हॉलीडे, ऑन ए वर्किंग डे। तो भैया तेरा कर क्या रहा तू शेड्यूल को? तो इसके ऊपर हम खास काम करेंगे, किया भी है, जो लोग कर रहे हैं। ये विक्रम, Yes, sir. नकारा कृष्णन, ऋषिकेश, यस सर। करण कुमार, समझ में आ रहा है? ये आपको डुबो देगा। तो जो लोग 3-3, 4-4 बार एसएसबी गए, भैया आप बार बार जा रहे हो, ये सीआईक्यू तो सेम ही था, आप में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा, मैंने कुछ बदलाव किया ही नहीं है, ये फंस जाओगे। Yes, sir. ये आपको गड्ढे में गिरा देगा। और मेरा फॉर्चुनेटली फौज में आने के बाद मैंने समहाउ ये बहुत डेवलप कर लिया था। क्यों डेवलप किया? एसएसबी के लिए नहीं, डेवलप हो गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, वो हम रेगुलर क्लास में देखेंगे। मेरी कहानी ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। यस सर। तो मेरा अगर सीआईक्यू एजुकेशन के बेस पे अगर मेरे को एसेस करते, मेरे को लात मार के बाहर निकाल देते। लेकिन मैं बचता कैसे हूं? बाकी सीआईक्यू से बचता। मतलब क्या बचता? वो तो एक ही बार बचा, अब क्या बचना है? ये तो समझ में आया? यस सर। Yes. दूसरा समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? अगर मेरा कोई खड़ूस इंटरव्यू ऑफिसर हो जो मेरा एजुकेशन को देख के अगर इरिटेट हो जाता तो मुझे उसी में गाड़ देता। बट मेरे को 45 मिनट तो इंटरव्यू दिया होगा, तो उसने एजुकेशन के बाद जब कुछ और चीजों में जब गया, उसने देखा इतना डेप्थ कहां से ले आया ये बंदा, इतना डेप्थ कि उसने एजुकेशन को साइडलाइन कर दिया। नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes. देयर इज अ मेथड, कर सकते हैं। ना लैंग्वेज स्किल, ना पढ़ाई, ना करंट अफेयर्स, ना जियोपॉलिटिक्स, बस वो फंस जाओगे। तो ये बहुत डेंजरस सीआईक्यू है। हॉबीज एंड इंटरेस्ट, गेम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, स्पोर्ट्स, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बिगेस्ट सट्टा मास्टर है। तो इधर पे अगर आप लो परफॉर्मर ओवरऑल पढ़ाई में भी, और इधर भी सट्टा मार दिया, आप अपने टांग पे कुल्हाड़ी मार दिया। इसे सुधार सकते हैं, कैसे करना वो देखेंगे। नेक्स्ट, आपने जो भी लिखा है उसका ड्यूरेशन क्या था और उसमें लर्निंग क्या था। अब देखो यार, विशाल के लिए ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल का बॉक्सर है, तो उसका तो पढ़ाई में मार्क्स हो ना हो सब माफ हो जाएगा, बिकॉज ये सीआईक्यू उठ जाएगा। हरिकेश का भी, इस साले विशाल को तो यूनिफॉर्म भी नहीं है, फौजी हो के हवलदार है, साले को यूनिफॉर्म भी नहीं पहनना आता, तो उसका तो सारा ही चेंज हो जाएगा जैसे वो इंटरनेशनल बॉक्सर बनेगा। बाकी लोगों का क्या होगा? जिसका पढ़ाई भी नहीं है, इंटरनेशनल बॉक्सर भी नहीं है, और सट्टे मास्टर है, वो फंस जाएंगे। ऊपर से गैप भी है और 4-5 बार एसएसबी भी गए हो और ये भी नहीं पता चल रहा हो क्या रहा है, वो फंस जाएगा। सो फेक हॉबीज, फेल डिटेल बेस्ड क्वेश्चनिंग। तो सबसे बड़ा पंगा जवाब देने में नहीं है, साले उस जवाब के ऊपर जो खुदाई करते हैं ना, उसमें बड़ा पंगा हो जाता है। कितनों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है एक पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक आता है स्कूल में, कॉलेज में, आर्मी में, आपके ऑफिस में, पता है ना? Yes, sir. Yes. तो Yes. पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आप कुछ भी लिख लो, जो भी आपको बड़ा चढ़ा के लिखना है, वो उसके अंदर जो प्रोब करते हैं वो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी नहीं देखते, वो देखते हैं उस पोजीशन में रहते हुए क्या क्या चैलेंजिंग सिचुएशन आए थे और उन सिचुएशन में आपको कैसे उसको प्रोसेस किया और उन डिसीजन में क्या आपने डिसीजन लिया और उस डिसीजन लेने का क्या बेसिस था और उसका परिणाम क्या हुआ, सही हुआ तो कैसे हुआ और गलत हुआ तो क्या आपने उसका अकाउंटेबिलिटी लिया। कितना वो समझ में आया? Yes, sir. Yes. दोबारा बोलूं? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोल दिया, अगर विक्रम ने बोला सर मैं अपने सेक्शन कमांडर हूँ, सार्जेंट, मेरे नीचे 12 बंदे हैं, बहुत अच्छी बात है, सेक्शन कमांडर हो। अब मुझे बताओ, तुमने जो 8 महीने सेक्शन कमांडर किया, उसके अंदर 3 मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन क्या है, प्रोफेशनल, सोशल, समथिंग एल्स, और उन सिचुएशन को तुमने कैसे डील किया, क्या चैलेंजेस आए,
कैसे डिसीजन लिया, उस डिसीजन का परिणाम क्या हुआ, सही हुआ तो बहुत अच्छी बात, गलत हुआ तो उसका जिम्मेवारी किसने लिया, तुमने लिया क्या, मतलब समझे क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. खत्म बात। Sir. तो आपने देखा होगा सवाल में भी थिंग, आपको पता भी नहीं चलेगा पूछ क्या रहा है, आप जो लिखना लिख लो, भाई साहब आपको वो ढूंढेगा क्या, उस स्टेटेड पोजीशन पे चैलेंजिंग सिचुएशन, हाउ डिड यू बाउंस बैक टू फेलियर, हाउ डिड यू ओवर, मतलब वो डिसीजन मेकिंग देख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग देख रहे हैं, ये तो टीएटी में भी देख रहे हैं, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग, व्हाट इज द फाइनल। टीएटी में कागज का हीरो करता है, यहाँ तुम करोगे, कितनों को सामने आ रहा है, अकाउंटेबिलिटी, अगर गलतियां हुआ उसका अकाउंटेबिलिटी तुम लेते हो या सेक्शन पे थोप देते हो, विक्रम ने बोला सर ये कॉपल है सुनता नहीं है इसके कारण हो रहा, क्यों भैया तुम तो सार्जेंट हो, कितनों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हारा तुम क्या टाइटल लिखते हो, कि पूर्वी ने लिखा आई एम द हाउस कैप्टन, आई एम द क्लास मॉनिटर, आई एम द स्कूल, क्या है तेरी ऐसी तैसी। हमें क्या चाहिए, जब तू हाउस कैप्टन थी उस टाइम में ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन क्या आए थे जहां पे तेरा डिसीजन मेकिंग लीडरशिप टेस्ट हुआ, कितना समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. इसको Yes, sir. खोद के निकाल लो और डिस्कस करेंगे अभी, और फिर देखेंगे क्या इस तरह के सिचुएशन में आपका कागज का हीरो वही कर रहा है जो आप एसडी में क्लेम कर रहे हो। नोट कर लिया, नोट बना रहे हो, नोट बना लो भैया, सुनते मत रहना, बाबा बाबा नहीं हूं बाबू हूं, ठीक है ना। सो दोबारा बोल रहा हूं, तुम क्या पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी या टाइटल लिखते हो, सेक्शन कमांडर, कंपनी कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, तेरी ऐसी तैसी। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द टाइटल, व्हाट आर वी इंटरेस्टेड, उस टाइटल के रहते तुमने क्या सिचुएशन फेस किया, क्या लीडरशिप निकला, और उससे क्या तुम्हारे बारे में जानकारी मिलता है। वी आर लुकिंग फॉर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, अब आप उसको अकॉर्डिंगली कर लो भैया। विक्रम, इज इट हेल्पिंग यू, समझ में आ रहा है? Yes, sir. सो आईओ लुक्स फॉर इन्फ्लुएंस नॉट अथॉरिटी। Right, क्या sir. बोला मैंने? IO looks for influence, not the authority. नॉट अथॉरिटी। भैया तुम सार्जेंट हो, तुम अपने सेक्शन कमांडर हो, बहुत अच्छी बात है, मैं सार्जेंट विक्रम का इन्फ्लुएंस देख रहा हूँ सेक्शन पे, ना कि तेरे को क्या होता। अथॉरिटी तो डंडा होता है, अथॉरिटी तो डंडा होता है, डंडे से तो सर्कस में शेर भी साइकिल चलाता है। हम इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, और इससे पहले आप अपना इन्फ्लुएंस दूसरों पे दिखाओ, आप अपनी काम वाली बाई के ऊपर इन्फ्लुएंस दिखाओ ना। काम वाली बाई मतलब अपने मन के ऊपर, तुम्हारा मन ही तुम्हारे से नहीं चलता, तुम क्या दूसरों को चलाओगे? कितना समझ आ रहा है रामन? Yes, sir. Yes, sir. ओके आगे चलो, नेक्स्ट देखो, प्रीवियस एसएसबी अटेम्प्ट्स, लास्ट कॉलम सिविलियन एंट्री के लिए। भैया प्रीवियस एसएसबी अटेम्प्ट्स जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब है एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, लर्निंग की कमी है। क्या बोला? Experience की कमी नहीं है, learning की। एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, लर्निंग की कमी है। Yes. या तो आप में पोटेंशियल नहीं है, आप एल्यूमिनियम है और आप तलवार बनने की कोशिश कर रहे हो, या आपको पता ही नहीं है कि वो कहां पे डेफिशिएंसी है जिसके कारण जा रहा हूं। इसका मतलब है आपकी इनवर्ड लुकिंग कैपेबिलिटी नहीं है। क्या नहीं है? Inward looking capability. Inward look. अंदर झांक नहीं पा रहे हो, आप कहानियां बदल रहे हो, कहानियां बदल रहे हो, खुद को नहीं बदल रहे हो। तो जितना ज्यादा रिपीटेशन होगा आपका, और आप ये बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब सिंपली है यू आर नॉट एबल टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस बिकॉज यू आर नॉट परफॉर्मिंग, यू आर एक्टिंग बेस्ड ऑन somebody who has told. Unless you take accountability for your failures and analyze the way you conducted, उसके लिए आपको एक गाइड की जरूरत है जो आपको वो गंदा क्रिटिकल फीडबैक देगा। मीठा बोलने वाले ही काम नहीं कर पाएंगे। मीठा बोलने वाले मतलब अरे कुछ नहीं है, इसको छुपा देंगे। जब तक आप डायग्नोज नहीं कर पाओगे, ट्रीट नहीं कर पाओगे। क्या बोला मैंने? पहले डायग्नोस करना जरूरी है, उसके तो बाद में ही somebody treat हो has to पाएगा। diagnose, लेकिन आप डायग्नोज करवा ही नहीं चाहते क्योंकि आपको अनकंफर्टेबल हो जाता है, बीमारी पता चलती है ना। आपको चाहिए कोई ये बोल दे इस बीमारी का रखते तो अफसर बन जाएगा, ऐसे लोग पसंद आएंगे, ऐसे लोग की कोचिंग चलती भी है, अपनी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायग्नोस हो जाता है। सो प्रीवियस एसएसबी अटेम्प्ट, नंबर ऑफ स्क्रीन आउट, नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, तो अपेक्षा यह है कि इस बार कम से कम वो अंदर झांक के आया होगा। लेकिन अगर आपका जवाब यह है कि सर पता ही नहीं चल रहा, इसका मतलब अंदर झांकने का जरिया ही नहीं मिला। लेकिन कॉन्फिडेंस ऊपर है क्योंकि कहानियां ठीक करके आओ। आप कहानियां बदल रहे हो, खुद को नहीं। पूर्वा क्या समझी तू? उल्टा हो गई रे लड़की। Actually, sir, my phone is on charging, and sir, I understood कि हमें कहानियां नहीं, हमें खुद जानना खुद चाहिए। को बदलना है। जब पूर्वा बदलेगी तो पूर्वा की कहानी बदल जाएगी। Yes, sir. तू साले रावण है और तू राम की एक्टिंग करेगी तो क्या फायदा? सो प्रीवियस अटेम्प्ट जो है इट रिवील्स लर्निंग एटीट्यूड। व्हाट डज इट रिवील? Learning attitude. Learning attitude and self awareness.
So a self-aware बंदा will be able to reflect and identify, oh shit यार मेरा तो करंट अफेयर्स ही नहीं है, साला मैं तो बोल ही नहीं पा रहा। ऐसा बंदा जा ही नहीं पाएगा एसएसबी में, बिकॉज उसको पता मैं खोखला इंसान हूं। लेकिन जिसको खुद के बारे में नहीं पता, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमने एक टी लीडरशिप में एक ट्रायंगल मॉडल किया था 1 2 3। Sir. तो Yes, sir. जिसका 1 छोटा है, Yes. स्टफ यू नो दैट यू नो, वो बंदा अंधेरे में है, और जिसका 2 बड़ा वो बेवकूफ है। स्टफ यू नो दैट यू डोंट नो वो बेवकूफ है, और जिसका 3 बड़ा है वो तो अंधकार में है। तो अब आप देख लो कि उस ट्रायंगल मॉडल में आप कहां पे हो। यहाँ पे मतलब in our approach to training, my job is to reduce your 3 and shift and enlarge your 2, and tell you the tools to shift from 2 to 1. Your job is to shift. Sir. श्योर आप लोगों ने मेरे नागपुर ट्रिप में आप लोगों ने किया है, एंड कल से वी विल डू ऑन अ मोर कॉम्प्लेक्स टेस्ट, दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट, सबसे खतरनाक टीएटी। सो दोबारा बोल रहा हूं, आपका प्रीवियस अटेम्प्ट्स और उसमें जो आपके प्रोबिंग होगा, इट हेल्प्स द इंटरव्यूइंग ऑफिसर टू रिवील योर लर्निंग एटीट्यूड। क्या आप लर्निंग में विश्वास करते हो या मैनिपुलेशन में विश्वास करते हो? और जो आदमी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेल्फ अवेयर जाएगा, उसका 1 तो ऑलरेडी बढ़ जाएगा, उसका 2 तो कम हो जाएगा। सो लर्निंग एटीट्यूड सिर्फ रिपीटर कैंडिडेट के नहीं है, रिपीटर को तो इंट्रोस्पेक्शन भी करना है परफॉर्मेंस का। कितना समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. तो जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम नहीं ये पता चल जाए व्हाट इज बीइंग टेस्टेड इन एसएसबी, एंड उसके रिलेशन में ये पता चल जाए हाउ आर यू परफॉर्मिंग विथ रिस्पेक्ट टू दैट, एंड ये पता चल जाए हाउ मच इज द गैप। कितना समझ में आ रहा क्या बोला? सो रिपीटर कैंडिडेट प्लीज अंडरस्टैंड, आप जितने ज्यादा बार रिपीटर बन के जा रहे हो और आप ये जवाब दोगे सर पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब है आप तो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता चला पर्सनालिटी किस डायमेंशन पे गैप आ रहा है। इनवेरिएबली वो फैक्टर 1 का आ रहा है, रीजनिंग, क्योंकि रिफ्लेक्शन करने के लिए रीजनिंग भी चाहिए, इमोशंस की भी समझ होनी चाहिए। तो आपका फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2 का प्रॉब्लम आ रहा है, तो अंदर ही नहीं जा पा रहे हो। दिस कैन बी करेक्टेड, टाइम लगता है। नेक्स्ट इज प्रिपेयर्ड आंसर्स। ये बड़ा आर्टिफिशियल लगता है रिपीटर्स को, सर मैंने तो टीएटी वेटी सब किया था, पता नहीं चल रहा सर, सर एसडी बहुत अच्छा किया था, मैं तो फट्टा बल्ली जीटीओ बहुत अच्छा किया था। अरे भाई फट्टा बल्ली। सो यहाँ पे जो कॉलम है इसमें प्रिपेयर्ड आंसर्स एकदम खोखला दिखता है, क्योंकि वो अंदर झांक ही नहीं पा रहा। टीएटी डब्ल्यूएटी जीटीओ फट्टा बल्ली स्टोरी से ऊपर ही नहीं जा पा रहा, ऊपर मतलब नीचे। जेन्युइन रिफ्लेक्शन स्टैंड्स आउट, क्योंकि यहाँ पे वो सीधा बताता है सर मेरा इंटरपर्सनल स्किल्स, मेरा कम्युनिकेशन स्किल, मेरा टीम में काम करने का, समवेयर मैं इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा था। स्टोरीज में सर आई थिंक मैं रेडीमेड स्टोरियां लिख रहा था, आई वाज नॉट ऑब्जर्विंग। उसका जवाब ही अलग होता है। कितनों को ये चीज अपने पिछले 1 वीक का 2 वीक के क्लास से समझ में आ रहा है? Yes, कितनों sir. को अपनी कमियां दिख रहा है क्लास में? Yes, sir. Yes, sir. अगर कमियां दिख रहा तो करेक्ट कर लो। सो दोबारा बोल रहा हूँ, प्रीवियस अटेम्प्ट जो है ये आपके लर्निंग एटीट्यूड को रिवील करता है और डिग्री ऑफ सेल्फ अवेयरनेस को दिखाता है। इसके बाद एक पूछता है सेल्फ इवैल्यूएशन, ओके अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बोलो। अब आप बड़ा चढ़ा के बोल दो साला उसने तो सब कुछ खोद दिया आपका। इट इज लाइक पूरा टीएटी डब्ल्यूटी एसआरटी करके बाद में बोलता है सेल्फ को डिस्क्राइब कर, वहां पे आप बड़ा बड़ा चमका लो, साला निकला ही नहीं टीएटी में। सो जेन्युइन रिफ्लेक्शन इट स्टैंड्स आउट। फेक आंसर्स इट बिकम्स वेरी वेरी आर्टिफिशियल, बिकॉज वो ऑलरेडी आपको खोद चुका है। एंड द मोर नंबर ऑफ रिपीटेशन इज देयर, योर असेसमेंट बिकम्स मोर टाइटर। ट्रेनेबिलिटी पे सवाल लगाएंगे, इट इज नॉट कि रेकमेंड नहीं होगा, पर डिग्री ऑफ क्लैरिटी हैज टू इंप्रूव। किया जा सकता है, क्लैरिटी चाहिए। कितनों को यहां तक समझ में आया? Yes, sir. सो इंटरव्यू में जो ब्लफिंग मारोगे ना, ब्लफिंग मतलब जो सट्टा, अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक, इसमें क्रॉस वेरिफिकेशन में मारे जाओगे। सबसे ज्यादा क्रॉस वेरिफिकेशन इंटरव्यू में होता है, साइक में कर नहीं सकता, जीटीओ में करता नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस में दिखता है, पूछ नहीं सकता। सबसे ज्यादा क्रॉस वेरिफिकेशन कहां पे फंसता है? इंटरव्यू। सबसे इजी टू क्लियर इंटरव्यू और सबसे ज्यादा ब्लफ पकड़ने की जगह इंटरव्यू। यहाँ पे 95% आप बोलते हो, तो यहाँ पे सट्टा मारोगे तो फंस जाओगे। मेजर जनरल है यार, वो साला डिविजनल कमांडर था और तुम उसको बेवकूफ बना रहे हो। सो पीआईक्यू एक बेस लाइन क्रिएट करके देता है, तो या तो आप पीआईक्यू के बेस लाइन से ऊपर परफॉर्म करोगे, अच्छी बात है, या नीचे जाओगे। और अगर आपका पीआईक्यू का बेस लाइन ही खराब है तो आपको नुकसान करेगा। जैसे मेरा था, मेरा तो बेस लाइन ही खराब था, लेकिन मैं बच गया बाकी चीजों से। वो क्या है वो हम देखेंगे। मेरा पीआईक्यू से क्लासिक पीआईक्यू, मेरे पास अपने जैसा कोई पीआईक्यू आ जाए, मेरा पहला ये है साला क्या गधा आ गया, बट
आई हैव टू गिव हिम अ चांस। उसके लिए उसको बाकी चीजों को चमकाना पड़ेगा, इतना चमकाना पड़ेगा कि मैं बोलूं चलो इसको माफ कर दो, क्योंकि ही इज क्लियरली मूव आउट ऑफ दैट। कितना को समझ में आ रहा? माई कहानी इज ए इंस्पिरेशन। आज मैं बोलते टाइम पूर्वा 11th में पढ़ती है, उसके क्लास में एक लड़की बोलती है, सर आपका ये पीआईक्यू देखने से मुझे समझ में आता, व्हाई शुड समबडी सेलेक्ट यू। मैंने कहा वही तो मेरी ट्रेनिंग का राज है, मैं तो खुद बोलता हूँ व्हाई शुड समबडी सेलेक्ट मी। किसने पूछा था पूर्वा तेरे क्लास में? It was Bhumika. भूमिका। इट वाज अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन सर, आपका ये पीआईक्यू देख के आपका पापा ये साला व्हाई शुड समबडी सेलेक्ट यू। मैंने कहा वही तो ट्रेनिंग का राज है भैया। सो पीआईक्यू इज द बेसलाइन। इनकंसिस्टेंसी एक्सप्लोजेस ब्लफ एंड आर्टिफिशियल बिहेवियर वेरी वेरी ऑटोमेटिकली। एक तो नीम करेला, ऊपर से नीम चढ़ा हो जाएगा। सट्टे मारो, अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक उठा उठा के अच्छा अच्छा लिख लो। लिखो आई एम डिटरमाइंड, कंपैशनेट, सिंसियर, हार्ड वर्किंग, लिख लो। यही सब तो लिखते हैं ना, एसडी में भी यही लिखते हैं। अब देखते हैं, अब मैं आपको बताता हूं हम ब्लफ कैसे पकड़ते हैं, सट्टा कैसे पकड़ते हैं। तो जब हम प्रोबिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, आपके ही बताए हुए किसी प्याज के टुकड़े को पकड़ते हैं और उसमें हम क्या जाते हैं, डीप में, डेप्थ में। तो जैसे हम उसको डेप्थ में जाते हैं तो आपको उस घटना से कनेक्टेड कोई कहानी सुनाना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं नैरेटिव। आप एक नैरेटिव बताते हो, उसको क्या बोलते हैं, नोट कर लो, क्या बोलते हैं? नैरेटिव। आपने जो बोला उसके ऊपर प्रोब कैसे करते हैं, आपने जो बोला उसके ऊपर पकड़ लिया और उसके ऊपर पूछता है यार कैन यू गिव 3 रीजंस, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट दिस है। तो जैसे 3 रीजन बोलते हो, अब आपको प्याज के नीचे घुसना पड़ेगा और आपको घटनाएं बतानी पड़ेगी जिसके आधार पर आपने बोला आई एम वेरी सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। उस घटना के बताने के प्रोसेस को बोलते हैं नैरेटिव। तो आप उसके लिए कहानी सुनाओगे, उस कहानी को पकड़ के फिर और नीचे चला जाएगा प्याज के, यार प्रोसेस एक्सप्लेन करो, कैसे तुमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया और यूएस के एयरपोर्ट तक पहुंचने का पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करो। अब पूर्वी को बताना पड़ेगा सर पासपोर्ट के लिए उधर गई, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट ले, सर ये सब लगा, अच्छा कहाँ गई थी इधर, उसमें क्या हुआ ये, अच्छा फिर क्या हुआ वीजा, क्योंकि उसने किया तो बता पा रहे, जिसने नहीं किया पासपोर्ट सर वो ऑनलाइन, अच्छा पता कहाँ पे, कितना पता ही नहीं चल रहा है, वीजा ऑनलाइन था, कितना समझ में आ रहा है? यस सर। तो नैरेटिव तुमको सबसे पहले क्या होगा, तुम कोई सीआईक्यू में कहानी सुनाएगा या तुमने पीआईक्यू में कुछ उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ के उसने बोला एक्सप्लेन, नैरेटिव सुनाना पड़ेगा, कहानी, घटना, वो घटना तुम्हारे जीवन से घटित होगा तो सही होगा, नहीं तो बनावटी बोलना पड़ेगा। उस नैरेटिव को लेके वो प्रोसेस पे घुस जाएगा, प्रोसेस पे घुस के वो डिसीजन पे घुस जाएगा। ओके डिसीजन, अब बताओ कैसे निर्णय लिए ये करने का, उस निर्णय में क्या पड़ा, उस निर्णय को देखने के बाद उससे कनेक्टेड इमोशंस के ऊपर बात करेगा और लर्निंग पे। अगर आपने किया तो ये सारे स्टेजेस क्लियर हो जाएगा, और आपने नहीं किया तो पहले या दूसरे छिलके में अटक जाओगे और झूठ के पांव नहीं होते। अच्छा साला ये जो ब्लफ आइडेंटिफिकेशन होता है वो एक साथ भी नहीं करता, वो एक चीज यहाँ पूछता है उसको छोड़ देता है और फिर कहीं और जाके आपका दिमाग भटका देगा, अचानक नैरेटिव से प्रोसेस पे आ जाएगा। तो आपको ये भी भूल जाएगा मैंने क्या सट्टा मारा था। जो लोग एसएसबी गए आपको पता चलेगा, आयुष को पता चल रहा क्या बोल रहा हूँ। आयुष कैन यू एक्सप्लेन मैंने क्या बोला? सर लेटर ऑन उसको कैसे ना कैसे वेरीफाई कर लेगा सीआईक्यू 1 की। मतलब आपका सीआईक्यू एंड एजुकेशन पे बात हो रही है कि तुमने 2 साल का गैप लिया, तो बोला वो गैप में क्या किया, तुम कुछ बड़ा बड़ा बोल देगा, वो अपना नैरेटिव बोल दिया तुमने, उसके बाद छोड़ देगा, अच्छा ओके, वो तुमको लगा बच गया, वो साला फिर स्पोर्ट्स इधर उधर अचानक लेके आ जाएगा यार वो क्या किया, हाउ डिड यू डू दैट, ले भैया मैंने तो वहां क्या बोला वही भूल गया। हुआ था ये? यस सर। बुरी तरह से सट्टा मारने वाला टिकेगा ही नहीं, लेकिन सच बोलने वाले को इसलिए टिकेगा बिकॉज उसको कुछ याद ही नहीं करना। कितना ये बात समझ में आ रहा है? सो दोबारा बोल रहा हूं, इसको नोट कर लो, ब्लफ कैसे पकड़ा जाता है, थ्रू प्रोबिंग। और प्रोबिंग का सीक्वेंस क्या है, ही कैचेस ए इशू दैट ही वांट्स टू प्रोब, वो प्याज का पहला छिलका, देन ही विल प्रेस यू फॉर अ नैरेटिव, then he will press you for the process, then he will press you for the kind of decision you took and the variables of decision, and then he'll press you for the emotions connected with that, then he'll press you for the lessons learned. Same thing he'll do it for repeaters. How did you prepare? Same he'll do अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन वीक है, करंट अफेयर्स वीक, जिसने किया है सर डेली हम करंट अफेयर्स पे डिस्कशन करते थे, ये करते थे, वो करते थे, आप बोल लो, जिसने नहीं किया वो ब्लफ मारेगा। तो 7:30 के क्लासेस को आपको बोलना आसान है, नहीं बोलना आसान है? आसान है सर। आसान है क्योंकि आप कर रहे हो, जो नहीं करेगा उसको ब्लफ मारना पड़ेगा। अब ब्लफ मारोगे फायदा तो हुआ नहीं ना, इंप्रूव तो नहीं हो रहा, तो भैया ये गेम है। सो रियल एक्सपीरियंस, अगर आपने वास्तव में कर रहे हो जैसे आप लोग कर रहे हो, मैं नागपुर गया था तब भी मैं देखता था आप ग्रुप में कर रहे हो, इसका मतलब क्या है,
वो आपका रियल एक्सपीरियंस है एंड रियल एक्सपीरियंस विल सेल थ्रू ऑल दीज प्याज के लेयर्स. कौन कौन सा? प्रोबिंग के नैरेटिव, प्रोसेस, डिसीजन, इमोशंस एंड लर्निंग. ये सारे लेयर को आराम से निकल जाओगे. और यही चीज कल से मैं आपके टीएटी रेस्पॉन्सेस में करूंगा कि भैया व्हाट लेड टू द सिचुएशन, कैसे आए इस पे, व्हाट इज करंटली हैपनिंग, डिसीजन मेकिंग, एंड कैसे आया, प्रॉब्लम ये है, सोल्यूशन ये कैसे आया. तो देखोगे ये तो यही चीज जो चीज इंटरव्यूइंग ऑफिसर कर रहा है वही चीज सही कर रहा है, ओनली थिंग वो पूछ नहीं रहा. तो वो आपको या तो सेलेक्ट कर रहा है तो रिजेक्ट, आपको पता नहीं चलता क्यों. लेकिन क्योंकि आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, देयर आई विल टेल यू कि लुक आपने व्हाट लेड टू द सिचुएशन ये बोल रहे हो, पिक्चर में ये हो रहा, पिक्चर में तो डेड बॉडी, आपने इसको ड्रामा बना दिया. फिर आपको पता चलेगा कोचिंग वाले ने करवाया. ये उस कोचिंग वाले ने करवाया, आपने क्यों एक्सेप्ट कर लिया? वेयर इज योर जजमेंट? आपका फैक्टर वन लो हो जाएगा. तो देन यू रियलाइज कि साला अपना दिमाग का पैसा देके खिचड़ी करवा लिया. कुछ समझ में आ रहा भाई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके. सो दोबारा बोल रहा हूँ, प्रोबिंग कैसे होता है, उसका सीक्वेंस क्या है? नैरेटिव, प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसके बाद उससे कनेक्टेड इमोशन एंड द लर्निंग. सो रिपीटर्स हैव टू गो थ्रू दिस एंड रियल जो एक्सपीरियंस है वो ये सारे लेयर को सर्वाइव करेगा, क्योंकि आप वास्तव में कारगिल ऑपरेशन में गए थे, सट्टा नहीं मारने. ब्लफ विल कोलैप्स एट द नैरेटिव लेवल इटसेल्फ. क्या बोला? ब्लब विल कोलैप्स यू. क्योंकि नैरेटिव आपको मन में बन गढ़ बनाना पड़ेगा, वही बनाना पड़ेगा, उसमें डिले आ जाएगा. कितना सामने आया? क्या बोला? Yes, sir. क्या बोला विक्रम? बताओ. नैरेटिव के लेवल मतलब प्याज के पहले लेवल पे अटक जाएगा. क्यों अटक जाएगा? सर वो उसने रियल एक्सपीरियंस लिया ही नहीं, तो वो उसको बता ही कहानी नहीं बता पाएगा, रहा है. एडिट ही नहीं कर वो पाएगा. उसको चेयर में बैठ के बनाना पड़ेगा झूठ मूठ का. और जैसे वो झूठ मूठ का बनाएगा, इंटरव्यू में उस टाइम छोड़ देगा, कहीं और जाके 6 मिनट के बाद वापस आ जाएगा. तो अब आपको यही भूल जाओगे प्रेशर में कि नैरेटिव क्या बनाया था, क्योंकि था ही नहीं. आई डोंट नो Right. कितने लोग समझ में आ रहा. भैया इतना इंटेलिजेंट Yes, सारा sir. सिस्टम है, खाल उधेड़ के हाथ में दे दो तो बेहतर है. ये मक्कारी उकारी छोड़ो, लेट्स वर्क ऑन इट. थोड़ा टाइम लगेगा, होगा यार. सो दोबारा बता रहा हूँ, रियल एक्सपीरियंस विल सर्वाइव ऑल दीज लेयर्स. और कितने लेयर है? 1 2 3 4 5 लेयर. नैरेटिव, प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग, इमोशन, लर्निंग. ऊपर से आपका लेयर. आपका लेयर क्या है? जो आपने पहले बोला था, सीआईक्यू का रेस्पॉन्स. तो 5-6 लेयर घुस जाएगा वो. टी लीडरशिप. विशाल समझ में आ रहा है? Yes, sir. यही चीज रशिया यूक्रेन वॉर का ले लो, यही टैरिफ का ले लो. आपने बोल दिया सर आई फॉलो करंट अफेयर, चल आ जाए कबड्डी कबड्डी. सो दैट्स ओके. सो what is the final takeaway? By honesty will help you than inflating your PIQ and CIQ. अब ऑनेस्टी में भी कुछ ऑनेस्टी ही आपको नुकसान कर देगा, क्योंकि मैंने तो ऑनेस्टली बता दिया, मैं बेवकूफ था, बेवकूफ हूं, बेवकूफ ही रहूंगा, ऑनेस्ट हूं. क्यों लेंगे वो? सो आपको ये देखना पड़ेगा, कभी कभी सच इटसेल्फ कैन कॉस्ट यू. सो आपको ये देखना पड़ेगा उस सच को कैसे हैंडल करना है. जैसे मेरे केस में था, साला 53 42 12th ड्रॉप आउट, फौज में गया, फिर एसएसबी जा रहा हूं. सो ये सच तो नुकसान करने वाला सच है. तो इनसे कैसे बचना है और उसको कैसे डेवलप. सो ऑनेस्टी इज बेटर देन इन्फ्लेटिंग योर पीआईक्यू एंड सीआईक्यू रेस्पॉन्स. बट कभी कभी आपकी ऑनेस्टी इटसेल्फ में नॉट बी एक्सेप्टेबल. आप ईमानदार हो लेकिन आप लोहा नहीं हो. नेक्स्ट इज लिमिटेड एक्सपीरियंस विद अ मैच्योर रेस्पॉन्स इज बेटर देन वाइल्ड एक्सपीरियंस विद अ इमेच्योर रेस्पॉन्स. एक्सपीरियंस तो बहुत है, मैच्योरिटी नहीं है. उसकी वजह थोड़ा ही एक्सपीरियंस है, गांव का लड़का हूं, लेकिन वो एक्सपीरियंस का एप्लीकेशन बहुत जबरदस्त है. साला एमडी का बोर्ड ही नहीं दिख रहा था आप लोगों को, वो फिर ऐसे एक्सपीरियंस का क्या करना है? एमडी का बोर्ड नहीं दिख रहा, लड़का रो रही है, लड़की रो रही थी पार्क में, आप कॉलेज में रुला रहे हो, तो कहाँ है आपका वो मैच्योरिटी? सो कितना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है उससे फर्क नहीं है. जो भी एक्सपीरियंस है एज के मुताबिक अप्लाई कर रहा है. सो एप्लीकेशन ऑफ योर एक्सपीरियंस इज मोर इंपॉर्टेंट. एंड रिपीटर हो तो आपका एक्सपीरियंस के दायरे में एसएसबी का प्रोसेस है. प्रोसेस तो आपको 4 बार से पता है, तो प्रोसेस का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है प्रोडक्ट में खराबी है, ठीक करना पड़ेगा. सो पीआईक्यू मस्ट रिफ्लेक्ट रियल लाइफ, नॉट एस्पिरेशन. क्या मतलब है? सर PIQ shouldn't be inflated, और जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस एस्पिरेशन मतलब मैं जो बनना चाहता हूं वो नहीं होना चाहिए, मैं जो हूं होना चाहिए. आपका एसडी मैं जो बनना चाहता हूं वो नहीं, मैं आज जो हूं वो होना चाहिए. और वो उसमें अगर कोई कमी हो उसको प्रिपरेशन फेज में ठीक कर लो. कितना समझ में आया? तो जरा मुझे एक फीडबैक दो यार, अभी ये इस सेशन से क्या समझ में आया बिफोर आई टेक मोर. सर विक्रम, बोलो विक्रम. सर इन द लास्ट वीक
आई केम अक्रॉस वेरियस पहले तो जो एप्लीकेशन थी चीजों के, मतलब प्रिंसिपल इटसेल्फ और उसके एप्लीकेशन चीजों पे, वो हमें अपनी लाइफ पे आई हैव टू वर्क ऑन देम। तो उसकी वजह से जो मेरी पर्सनैलिटी और जो मेरे ट्रेड्स हैं या जो चीजें मेरी निकल के आई हैं, आई हैव टू राइट देम डाउन सो दैट आई कैन वर्क अपॉन देमसेल्व्स। अपने आप को और उस एक्सरसाइज से अपने आप को पहचानने में मदद मिल रहा है ना? यस सर। ओके, हाँ, और बोलो। और सर उनके करेक्टिव एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, उन यस, एक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है सो दैट हम फ्यूचर में जब भी एसएसबी जा रहे हैं तो उन चीजों को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए कि हमने मुझे एक बात ये बताओ, हमारे इश्यू थे, हमने इन मुझे पे अच्छा रिजॉल्व बताओ किया। विक्रम, अगर एसएसबी नहीं भी जा रहे हो, इज इट स्टिल नॉट हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड यू एज अ पर्सन, यस सर। you as a professional, you as a husband, you as a father, you as a son, ये आपको पहचानने में मदद नहीं मिल रहा? यस सर। मिल रहा है। तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना? हाँ, एक टाइम ऐसे एसीसी गया था सर अच्छा, 2018 में सर। हाँ, तो कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था सर उसमें। अच्छा, अभी मेरा सेकंड टाइम है सर ये एफकेट का, ओके, मतलब एफकेट का फर्स्ट टाइम है, एसीसी लगा करके एसएसबी सेकंड है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ऋषिकेश। Jai sir. हाँ जी, From today class, I got key how the game sports and hobbies is important in SSB and how a genuine response is important. And I also get that key bluffing will impact on bluffing will lead to non-recommendation in अरे SSB. नॉन रिकमेंडेशन छोड़ो यार, तुम I बताओ, also तुम अभी हवलदार हो, तुम्हारे साथ एक सिपाही आके झूठ बोले, सट्टे मारे, तो तुम उसको प्रमोट कर दोगे? no sir. तुमको गुस्सा नहीं आएगा? बोला साला तू एक तो गलत करता ऊपर से झूठ बोलता, नहीं बोलेगा? Sir. तो ऐसा क्यों लग रहा है कि एसएसबी में झूठ बोल दूंगा बड़े खुश हो जाएंगे? एक सेक्शन कमांडर से एक No. लड़का झूठ बोलता है और वो उसको गुस्सा आ जाता, बोलता तुम साला एक तो गलती करते ऊपर से झूठ बोलता, सच क्यों नहीं बोला? बोलते हैं ना? ये yes sir, yes sir. वही चीज तो एसएसबी में एक मेजर जनरल को जाके झूठ बोल रहे हो ऑफिसर बनने के लिए, एक साला ड्रिल Sir. उस्ताद को झूठ बोल दो, देखो कैसे रगड़ता ड्रिल उस्ताद। Yes sir. तो चलो, गुड, फायदा हो रहा क्लास से? सर बहुत ज्यादा सर, मतलब हाँ, गहरे में डीप सोचने का मौका मिल बहुत रहा है बढ़िया और है, बहुत सोच अच्छी भी बात रहे है। तो यानी सोच में डेप्थ तो आ ही रहा है, बहुत अच्छी बात है। और कौन है रेगुलर क्लास वाला? कौन है? एक दो विशाल, तुम बोलो यार, बॉक्सर। Sir, when I was filling PIQ and CIQ, I was working on PIQ and CIQ. Then I found that I have many things to work on. So I started working on that, and many things I came to know about myself also. थोड़ा That जोर से बोलो, नजदीक करो, माइक को नजदीक करो। हाँ, मुझे सर बहुत सारी चीज ऐसे भी पता चली कि मेरे को पता नहीं है और मुझे पता होनी चाहिए थी मेरे बारे में ही। और बहुत सारी चीजें ऐसी है सर जिसमें मैं जब PIQ CIQ के बारे में कर रहा था तो मुझे ऐसे लगा कि मैं यहाँ पे भी काम कर सकता हूँ, इस फील्ड पे भी काम कर सकता हूँ। मैंने किया नहीं अभी तक, और अब मेरे पास टाइम है तो मैं अब इन सब चीजों पे काम कर सकता हूँ सर। तुम तो बहुत जल्दी कर रहे हो यार, तुम्हें तो घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू गॉट सो मच ऑफ टाइम। ओनली थिंग इज, इस Yes, टाइम sir. में तुम्हें ये पता चल जाना चाहिए कि करना क्या है, एंड देन समय रहते उसको Yes, कर sir. सकते। सो मच ऑफ टाइम, ये प्रॉब्लम उन लोगों का जो अभी 2 महीने में जाने वाले, 1 महीने में जाने वाले हैं, उनको प्रेशर आएगा। Yes, sir. चलो गुड। नेक्स्ट कौन है यार? एक आध और रेगुलर क्लास वाला बोलो, कौन बोलेगा? करण कुमार, आप रेगुलर क्लास के हो ना? Yes, sir. ये करण बोलो यार, क्या समझ में आया जरा? So for me, key takeaway from today's session was कि हमें मतलब probing से इशू होगा तो हमें कभी भी मतलब ब्लफ नहीं करना है। ब्लफ किया तो पकड़े जाएंगे फर्स्ट लेयर पे आप देखो ना यार, आप घर में झूठ बोलते पकड़े गए तो ज्यादा डांट पड़ती है, ऑफिस में झूठ बोल के पकड़े गए तो जिसको झूठ बोलते उनको भी समझ में आता है सट्टा मार रहा है। यस नो? यस। तो एसएसबी जैसा एक जगह जहां पे एक साला प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चेक कर रहे हैं, वहां झूठ का सहारा ले रहे हैं, सट्टे मार रहे हैं, उसकी जगह में अगर अपने अप्रोच को थोड़ा चेंज करे, अपने ऊपर काम करे, तो ये पूरा प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन उसमें मेहनत है। पहला सवाल तो है, क्या मैं मेहनत करने को तैयार हूं? अगर आंसर यस है, देन देयर इज अ राइट वे। अगर आंसर नो है, देन यू विल हैव टू लुक फॉर शॉर्टकट, और बहुत लोग देते हैं। यस सर। पहली बार जा रहे हो? नहीं सर, मैं रिपीटर हूँ, स्क्रीन आउट हुआ था लास्ट टाइम। ओके, कौन से एंट्री के लिए? सर मैं गया था SSC नेवी टेक। ओके, ठीक है। आयुष, क्या समझ में बताया? तेरे को कुछ पकड़ में आ रहा है? यू गॉन 6 Yes, sir. लैंग्वेज इज नॉट अ प्रॉब्लम, तेरा लैंग्वेज में बहुत अच्छा कंट्रोल है, लेकिन कहीं ना कहीं क्लैरिटी के ऊपर इशू हो सकता है। क्या समझ में आ रहा है?
So the most prominent thing which I understood is the mindset. The thing on which I have to work is my mindset. Rather than I was just focusing on the testing tools which were there, just going for the TAT stories, smuggling up the ideas and all those things. सोच के देख कितना टाइम तुमने इन्वेस्ट किया. टाइम तो गया ना, लेकिन डायरेक्शन नहीं था. और जिस तरह से जो तुम्हारी लैंग्वेज की क्लैरिटी है, यू हैव गॉट अ गुड एक्सप्रेशन, बट व्हाट आर यू एक्सप्रेसिंग, वो बड़ा क्वेश्चनेबल है. या बोलो. Okay, and sir, the one prominent thing another is the narrative. Yeah. The narrative. देखो मैं बताता हूँ तुम्हारे साथ एक और चीज का क्या प्रॉब्लम हो सकता है. बिकॉज योर लैंग्वेज इज गुड, दैट इज गिविंग यू आर्टिफिशियल कॉन्फिडेंस. तो लैंग्वेज अच्छा होता तो हमें लगता है मैं निकाल लूंगा, तो कहानी बना लूंगा. दैट कहानी बनाना इज नैरेटिव. एंड क्योंकि तुम्हारा लैंग्वेज अच्छा है तो कॉन्फिडेंटली तुम कहानी बना लेगा. द प्रॉब्लम इज जैसे तू कहानी बनाएगा और उसको पता चल गया सट्टा मार रहा, ही विल इंटरनली गेट इरिटेटेड कि साला एक तो करता नहीं है, ऊपर से सट्टे मार रहा कॉन्फिडेंटली, फिर तेरे को नेक्स्ट प्रोसेस में चला देगा. उधर वो ऐसा टूट के बिखर जाएगा. होता है ना. CIQ 1 का प्रॉबिंग क्वेश्चन CIQ 3-4 के बाद आता है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा साला वो कब उधर से आके इधर आ गया. Yes. यू आर वेरी स्मार्ट क्योंकि लैंग्वेज अच्छा है. अबे लैंग्वेज अच्छा नैरेटिव कैसे याद रखेगा, वो तो बनाया सट्टा है, फंस जाएगा. So you have to be a little more careful in terms of what are you preparing, है ना. Yes sir. है ना. लैंग्वेज एंड दिमाग भी लग रहा है क्योंकि तू जो फीडबैक दे रहा है उसमें लॉजिक भी लग रहा है. ओनली जो प्रिपेयर कर रहा है उसके क्वालिटी पे ध्यान दे रहा है. एंड देन सिंस यू टोल्ड मी देयर आर 2 गैप्स, दैट इज अ वल्नरेबल पॉइंट. आपने कभी पूछा उसके ऊपर? सर गैप के ऊपर SSB में बहुत पूछा गया है. बस खत्म यार. मैं तो ढूंढता हूँ, मैं तो PIQ में पहला देखता हूँ, साला गैप तो नहीं है, क्यों मार करता हूँ, उसमें मजा आता है खोदने में. और उसमें gap and although there is a percentage drop from in 10th I scored 90 percentages, then in college 64 percentages. तो 90 से कॉलेज में 64 there is a drop. Now question is how do you justify narrative? वो narrative में probing में फंस गया तो साला ऊपर से अगर करंट अफेयर्स वीक है और हॉबीज इंटरेस्ट में सट्टा मारा तो पैटर्न आना शुरू हो जाएगा. फिर वो बोलेगा 6 बार गया है, क्या हो रहा है. तो you will have to break the pattern. Okay. How do you break the pattern? It is to first reflect, साला वास्तव में क्या हुआ, वास्तविकता क्या थी, मैं स्टोरी क्या सुना रहा हूँ. Can I change the narrative? सट्टा मार के नहीं हो रहा, सच बोलने से क्या होगा. सच बोलने से क्या होगा, कम से कम सट्टा मारने का जो माइनस है वो तो हट जाएगा. अभी सच का असर क्या होगा, नुकसान तो होगा. इस असर को बचने के लिए और क्या चीजें कर सकते. जब तक इस तरह से नहीं सोचेंगे ना, ये चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलेगा. So we'll see that. Good. और anyone else who wants to speak? या भविष्य चौधरी तुमको मैं इसमें ऐड किया. सो तुम आया था साइट टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए, बट योर रेस्पॉन्सेस इज लैकिंग लॉट ऑफ थिंग. पता चल रहा है ना भविष्य? यस सर. एक चीज मैं बताता हूँ पहले. लेट मी से द पॉजिटिव दैट आई फाउंड इन यू. मैंने शायद तेरा 3 स्टोरी को नागपुर से एनालाइज किया था. यस सर. I found you very sharp to understand my observation, and I also found you very sharp to understand the corrections that I was telling you. Yes sir. The only problem is you were responding to my instructions. Why is you not able to create your own understanding? उसमें प्रॉब्लम आ रहा है. पता चल रहा है? हाँ. यस सर. अब बता क्या है. तो पहली बार 2 बार गया ना, पहले बालनोई में भी गया शायद. कहाँ गया था? हाँ सर, एक बार ही गया था बालनोई में. क्या हुआ है, क्या हुआ? why this problem that you're facing? You again have a language problem नहीं है, तेरे को language का problem नहीं है. Yes sir. But clarity का problem है. Yes sir. After taking your psych assessment, जो आपने स्टोरीज बताई थी ना, जो आपने स्टोरी आपने बताई थी, करेक्ट. उसके बाद सर मुझे लगा the first problem I have the perception problem, that I have the preconceived perception. Perception से भी ज्यादा, perception तो दिमाग के अंदर है. उससे भी पहले तेरा एक प्रॉब्लम जो आया वो है ऑब्जर्वेशन का. हाँ, ऑब्जर्वेशन पहले आएगा या परसेप्शन पहले आएगा? ऑब्जर्वेशन. तुम पार्शियल ऑब्जर्वेशन करता है. हाँ. यस सर. क्यों करता है? क्योंकि दिमाग में पहले से ही कुछ स्टोरियां पड़ी है, तो तेरे को लगता है यार ये देखने की जरूरत है, थोड़ा सा देखो, बाकी तो मेरे अंदर ही है. कनेक्ट करता हूँ. कनेक्ट करता. तो क्या करता है? पिक्चर से आंखों को पिक्चर को समझने के लिए, फोकस करने के लिए टाइम नहीं देता. यू सिंपली टेक सम ब्रॉड इनपुट एंड बाकी माइंड उसको फिल कर रहा था तेरा. Yes, सही बोला? Yes sir. इसका मतलब you have a more than the perception problem, you have an observation problem. Yes sir. उसके बाद साला अंदर रेडीमेड कहानियां पड़ी हुई है. तो क्या कर रहा है दिमाग पे? instead of understanding what led to the situation, you are saying which story will fit.
fit. Yeah, I'm trying to fit the तो story. Yeah. स्टोरियों को फिट कर रहा है बजाय कि सोचने को, तेरा पूरा प्रोसेस बिगड़ गया था. Yes, sir. डू यू रियलाइज दैट? Yes, sir. और अभी जब वो प्रोसेस को तोड़ दिया तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग में चैलेंज आ रहा है. Yes, sir. ये चल जाएगा. That's why I said कि तेरे को तेरा सिर्फ असेसमेंट से तेरा काम नहीं चलेगा. असेसमेंट तो तब है जब तुझे अंदर पता चले. सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग असेसमेंट व्हेन योर प्रोसेस इज रॉन्ग? सो दैट्स व्हाई आई सेड कि तेरे को क्लास में, रेगुलर क्लास में आ, क्योंकि रेगुलर Yes, sir. क्लास में प्रोसेस ठीक किया जाएगा. विल डू इट फ्रॉम Yes, sir. टुमारो. सो दैट्स व्हाई आई एडेड यू. आई होप इट विल हेल्प यू. एंड आज का क्लास से क्या फायदा मिला? सर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने बात की थी वाइड एक्सपीरियंस वाली, कि इफ यू हैव वाइड एक्सपीरियंस बट यू कांट लाइक एक्सप्रेस इट, तूने or देख can't एक have बात a तूने maturity. तूने एक बात जो बोला मुझे अभी भी याद है. तूने बोला सर सिंस आई वर्कड इन इन्फोसिस आई मेक कनेक्टेड दिस पिक्चर टू इन्फोसिस. हाँ, yes, yes. दैट पिक्चर हैज नथिंग टू कनेक्ट विद इन्फोसिस. वो तो साला एक वो घुमाने वाला याद है ना वो? हाँ, याद है सर वो तो एमडी बता वाली पिक्चर. तूने बहुत बड़ा बात बोल दिया. सिंस आई हैव वर्कड इन इन्फोसिस, साला उस फोटो को इन्फो, अरे देयर इज नो रिजेम्बलेंस ऑफ दैट. तूने अंबानी के घर में तूने काम करता था, तूने झुग्गी को अंबानी के घर से कनेक्ट कर दिया. वेयर इज द लॉजिक? वेयर इज योर एबिलिटी टू अप्लाई योर नॉलेज? तो वो बहुत Yes, sir. बड़ा गैप है. वो बहुत बड़ा गैप है. सो देन आई वाज एट नागपुर. वहां से सिग्नल का भी प्रॉब्लम आ रहा था. मैंने सर तू भविष्य छोड़ दे, यू अटेंड रेगुलर क्लास, सो यू हैव स्टिल टाइम फॉर टिल 19th of April. Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. वो only assessment will not work. Only assessment तेरे को इतना गैप दिखा दूंगा, कॉन्फिडेंस टूट जाएगा. So you continue attending this and we will do. और इंटरव्यू तो कर ही देंगे. एंड ये भी इंटरव्यू में भी now you will realize there are a lot of gaps that I'll help you in bridging the gap. Prepare it and then we'll see इसको. ठीक है ना? So you attend continuously and I'll reschedule the classes to fit your requirements. ठीक है? Yes, sir. Now today's class is a regular class. This is a regular class and tomorrow onwards the second day will be there. So those who wish to join, this is a regular class and you can join from tomorrow. फर्स्ट डे तो आपने अटेंड ही कर लिया. एंड दोबारा बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ मास कोचिंग. यहाँ पे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं मिलेगा. एग्जैक्टली वही मिलेगा जिससे आपके मूल स्वभाव में परिवर्तन गहराई में करे. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स, नॉट द प्लेस. दिस इज डिजाइन फॉर पीपल हु वांट क्लैरिटी, नॉट शॉर्टकट. दोबारा बता रहा हूँ, खुल के मत आना शॉर्टकट के लिए. मैं दूंगा ही नहीं, है भी नहीं सही तरीका. ठीक है ना? So if you're a serious person who is not looking for motivation and theory, but who is looking for depth and clarity, you are the place. And you can contact me on this number. ये number आपके पास already है 9090099035. अपने दोस्तों के साथ share करो. And we meet tomorrow. And all those people जो regular class वाले, please share your PIQ form and be prepared for your psych test का discussion के लिए tomorrow. And I'll give you one thing, that is SD. साइकोलॉजिकल टेस्ट का SD है, व्हाट योर पेरेंट थिंक. जो दिल में आता है, जो भी दिल में आता है उसको भी लिख के मेरे को भेज देना कल के क्लास से पहले, 6 बजे से पहले. जो भी दिल में आता है, गलत सही, जो दिल में आता है उसको लिख के देना, ताकि वी विल रिफाइन दैट, ताकि हमारा PIQ का सेल्फ इवैल्यूएशन, साइक टेस्ट का सेल्फ डिस्क्रिप्शन एंड जो सेल्फ का असेसमेंट निकल रहा है, हमें पता चले हम हर जगह में क्या क्या बोल रहे हैं और निकल क्या रहा है. फिर देखेंगे इसके अंदर लयताल कैसे अलाइनमेंट कर सकता है, कैसे लाना. कितना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. दोनों चीज पे काम होगा, क्या टेस्ट कर रहे हैं और कैसे टेस्ट कर रहे हैं. एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू ग्रेटली इन अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ एंड योर परफॉर्मेंस. ठीक है ना? सो वी मीट टुमारो एट 8:30. थैंक यू एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू.